to this induction meeting, and as I've seen that many students have joined here, and now we can formally start the program. First of all, I welcome our main resource person today, our chief guest, Professor Hina K. Bisley, who is the country coordinator of this program. And Madam, we welcome you to this induction meeting, and we are very much thankful to you for agreeing to our request to address our students. Actually, around more than 250 students across the country have taken admission for this program for the current ongoing this cycle of admission, and out of which around 30 students belong to Regional Center of Bhopal, and rest of them belong to other regional centers. In Madhya Pradesh, we have two regional centers, one at Jabalpur and another at Bhopal. And this time, what we have done is that we are jointly holding these meetings, these induction meetings, and keeping in view of the fact that very little time is left for the students to start their studies. So we decided that we should jointly hold academic counseling sessions. And now, first of all, I request all these students to please keep their mic in mute condition, and please also keep your video off. Quite some time we have seen that the place where the students are sitting while joining these programs is not very aesthetically, not very appealing, and that's why it creates hassles in the smooth conduct of the program. So I request all of you to keep your videos also in off condition. That is always advantageous because it gives you more bandwidth to interact during the program. So uh, uh, we welcome all the students and our resource persons, my own colleagues at the Regional Center Bhopal, Jabalpur, and all the other regional centers across the country. And we had sent you this invitation yesterday only. And I know that the students don't see their emails very frequently, and that's why many of them might not have seen actually their emails. But that's the first thing, students, I would like to tell you that when you are studying in IGNOU, you should develop a habit of seeing your emails. Always, very frequently, at least once a day, you should see your emails, because quite sometimes what happens is that we send you such intimations about the counseling sessions or any kind of meetings which we hold with you at a very short notice. And therefore, you should have that habit of seeing your emails. Anyway, so first of all, without wasting much of the time, I invite our program coordinator for this program, Professor Hina Bisley, to make a presentation about the program, Diploma in Event Management. And then you please carefully listen to the resource person. And after that, whatever problems you have or any kind of queries, if you have, every student will get an opportunity to interact with the resource person. And as far your administrative queries are concerned, we will respond to your administrative queries separately. Means any such query, like if you have not received the study material or how you are going to submit the assignments of any other kind, this kind of administrative queries will be dealt separately towards the end of the program. First, we will tell you about the structure of the program, how the program will go on, and then what exactly is expected from you, and of things of that kind. So now I request our resource person, Professor Hina Bisley, to please make a presentation address at student, madam. Over to you, please. Thank you, Dr. Pandey. That was really gracious of you to invite me for this session, because I've also been looking forward to have an interaction with all the students of Diploma in Event Management. So welcome to all of you students, all team members of Regional Center Bhopal and across the country also, all students of Diploma in Event Management who have Excuse me. taken Uh, interest. Excuse me, Yeah. ma'am. Just a small this kind of request from my side is because as I'm seeing here in the chat box that most of these students are from Hindi speaking background, and it has Ha. been our experience that So the students yeah. really like to be informally talked about the program in Hindi or English mixed language, and this is my sincere request to you. Please use bit of Hindi also while you will be speaking. Sure. So
सो मैनी ऑफ यू, जितने भी बच्चे यहाँ हमसे जुड़े हैं, मेरे ख्याल से आप लोग किसी पर्पस से, किसी वजह से आपने ये डिप्लोमा प्रोग्राम में एनरोलमेंट लिया है. तो I will be taking you through what this diploma program is all about. इसमें आपको क्या-क्या मॉड्यूल्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, समझने हैं, एंड देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपको इसमें कैसे असाइनमेंट सबमिट करने हैं, आपके टर्म एंड एग्जाम्स कब होंगे, और कौन से पोर्टल्स पे आपको इंटर्नशिप और प्रैक्टिकम वर्क सबमिट करना है. ये सारी बातें हम समझेंगे. बट लेट मी फर्स्ट टेक यू टू थ्रू अ स्मॉल प्रेजेंटेशन जिसमें आपको पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट क्या है, हम यहाँ क्यों हैं, और हम डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट में क्या पढ़ेंगे. सो आई जस्ट डू अ स्मॉल स्क्रीन शेयर विद यू. Actually, I don't have the screen sharing rights. Pandeyji, I think you'll have to give me the rights to screen Okay. share. Yeah, Yeah. Dr. Amshul, please say. Yes, ma'am. I have given the rights. Okay, बाकी yeah. लोग से अनुरोध है हो कि गया, अपना हो गया. वीडियो ऑफ करें. हाइपर स्टॉक्स सुरेश बरखाने जी अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए. अंजलि शर्मा आप भी अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए. Ma'am, the rights have been given, please. Yeah. Can you see my PPT on the screen? Yes. No. Yes, सब ma'am. देख पा रहे हैं मेरा स्क्रीन? हाँ, ठीक. देख पा रहे Yes, हैं. yes, yes. Okay. Yes. Okay. So, welcome to this induction session. थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम यहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट क्यों पढ़ रहे हैं. ऑब्वियसली आप सब ने किसी वजह से एडमिशन ली है डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट में. कुछ में से आप बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये एक बहुत ही नया प्रोफेशन है और आपको क्यूरियोसिटी होगी. कुछ में से आप ये सोचते होंगे कि इसमें हम लोगों को जो कौशल हासिल करने हैं, हम इवेंट इंडस्ट्री को अच्छे से जानते हैं, हम और थोड़े स्किल्स या कौशल हासिल कर लें. कुछ लोगों को ये रोजगार के नजर से आप देखते होंगे कि इसमें आपको एम्प्लॉयबिलिटी मिलेगी. और ये सारी बातें इस program में luckily हैं. All of you are very lucky to take up this program because we need to understand why we are studying event management here. हम तो ऐसे एक induction में आ गए हैं, but हमें ये जानना आवश्यक है, जरूरी है कि हम क्यों इसको पढ़ने जा रहे हैं और इसमें क्या-क्या पढ़ेंगे हम. So first of all, event management की सफलता के लिए हमें पेशेवर रूप से प्रबंधित करने की आवश्यकता है. We need to have all the proficiency expectations of a modern profession, which is what is taught in event management today. देखिए, इवेंट मैनेजमेंट की नींव बहुत पहले से डल चुकी थी. जब मानवता शुरू हुई थी, जब ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुआ था, तब से इवेंट मैनेजमेंट चल रहा है. पर हमें इसका एहसास बिल्कुल नहीं है. वी डोंट नो दैट वी हैव बीन मैनेजिंग इवेंट्स सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. ऑफ कोर्स मेनी ऑफ अस हैव बीन पार्ट ऑफ इवेंट्स. हम इवेंट्स में हिस्सा ले चुके हैं, हम इवेंट्स देख चुके हैं, बट वेरी रेयरली हैव वी मैनेज्ड इवेंट्स. हमने मैनेजमेंट बहुत कम की है, अब बहुत छोटे लेवल पे की है.
और जैसे किसी रिश्तेदार की शादी हुई है या किसी बर्थडे पार्टी में हमने हिस्सा लिया है उस तरीके से, लेकिन हमने उस लेवल पे इवेंट मैनेजमेंट नहीं किया है जिस लेवल पे हम देखते हैं आजकल जिस पैमाने पे इवेंट्स हो रहे हैं। तो ये एक्चुअली एक आधुनिक पेशा है और इसमें ह्यूमन रिसोर्सेस की एप्लीकेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमें वो आवश्यक कौशल की जरूरत है जिससे हम ये रोजगार चला सकें। तो युवा रोजगार की बहुत ज्यादा डिमांड है, बिकॉज सिंस लेट 1990s इवेंट मैनेजमेंट अज्यूम प्रोमिनेंस इन इंडिया। तब से हमें दिखने लगे हैं कि इवेंट्स कैसे होते हैं, बड़े पैमाने पे इवेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं छोटे पैमाने के साथ साथ। सो देयर आर स्मॉल स्केल इवेंट्स बट देयर आर लार्ज स्केल इवेंट्स टू। तो इसका जो थियोरेटिकल नॉलेज है, जो सैद्धांतिक ज्ञान है, वो एक्चुअली वैचारिक समझ के साथ साथ हम पढ़ेंगे। इसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम एक प्रोफेशनल प्रोग्राम करें, जैसे डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट हो गया या सर्टिफिकेट इन इवेंट मैनेजमेंट हो गया। So we need that kind of a curricula to offer learning and assessment opportunities for whatever knowledge we are gaining. उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं उस नॉलेज को, उसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए आजकल हमें इवेंट मैनेजमेंट पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो दूसरी बात यह है कि इट प्रोवाइड्स यू द टच एंड फील एक्सपीरियंस। अगर आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज के लोगों से बात करेंगे, उनके पर्सनल से बात करेंगे, व्हेन यू टॉक टू इवेंट कोऑर्डिनेटर्स, इवेंट प्लानर्स, इवेंट मैनेजर्स, you will realize, even when you look at events on the television or in your vicinity, you look at activities happening in Nehru Stadium or Wankhede Stadium in Mumbai, or whichever activities you see around you, be it sports, be it fashion pageants, whatever, you see that events provide the touch and feel experience. ये real time में होता है। अगर आप एक प्रोडक्ट लॉन्च में जाते हैं, जो कि एक इवेंट है, जो कि बहुत ज्यादा आजकल प्रोमिनेंस में है, अगर आप एक प्रोडक्ट लॉन्च में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको वो प्रोडक्ट को अनुभव करने का मौका मिलेगा। सो ऑल दीज आर स्पेशलिटीज ऑफ event management, which you cannot see through normal advertising, normal pattern of showing things and so on. So it is very, very important to understand that this is a very different industry altogether. ये advertising के ऊपर है, advertising से बढ़ के है, क्योंकि इसमें added advantage है, आप बहुत कुछ देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं on site. So it is very, very important to understand how this gets carried out. So whether it is a corporate event, whether it is a sports event, whether it is a entertainment event, a wedding, you have to put in a lot of logistics, conceptualization and coordination to bring together what is called an event. And this event is about experience. ये अनुभव क्या व्यवसाय है, this is called the business of experiences. तो ये बेहद अनोखा है, because you see that no two events are the same at any point, at any time. चाहे आप एक बुक एग्जीबिशन ही देख लो, आपके ही स्टेट में हो रहा हो, एक जगह से दूसरे जगह, तो बुक एग्जीबिशन हो या रॉक कॉन्सर्ट हो, कुछ भी हो, ये इसमें समानता नहीं होती है, ये बहुत अलग होता है। क्यों? क्योंकि वही इवेंट मैनेजर होगा, वही इवेंट कंपनी होगी, लेकिन जो लोग होते हैं, जो जगह की क्लाइमेट होती है, जगह का टेरेन होता है, जो लोग उस इवेंट को विजिट करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो सब अलग होते हैं। इसीलिए हर इवेंट जो है वो यूनिक और अलग सा होता है। मैनेजमेंट ऑफ इवेंट्स इज अ सर्विस एक्टिविटी। ये एक सेवा गतिविधि है और इसके लिए आपको विशिष्ट कौशल की आवश्यकता बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक आम बिजनेस की तरह नहीं चलता है, इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं। तो you as an event manager, when you study event management,
you are taught to sell the idea to the client. आपके जो client है जिसके लिए आप host करेंगे event, उसको आप वो idea सिखाएंगे, बताएंगे. So this is very very important for you to understand that आप एक बहुत ही अनोखा skill सीखने जा रहे हैं जो जो दूसरे प्रोफेशन से बिल्कुल अलग होता है. So इसके लिए आप किसी भी पेशे में उत्कर्षता प्राप्त कर सकते हैं. जो भी आप प्रोफेशन में एंटर करेंगे, यू विल बी इक्विपिंग योरसेल्फ विद स्किल्स टू एक्सेल इन एनी प्रोफेशन. वो इस पढ़ाई की खासियत है. जो भी आप पढ़ेंगे इवेंट मैनेजमेंट में, जिसमें आप स्किल्स गेन करेंगे, उससे आपको बहुत सारे प्रोफेशंस में आपको स्पेशलाइजेशन हासिल होगी एंड यू कैन एक्सेल इन देम. तो आज के दिन ये $1 करोड़ इंडस्ट्री से ज्यादा का उद्योग है. इसमें बहुत सारे फायदे हैं. यू कम टू नो अ लॉट अबाउट डिफरेंट थिंग्स इन इवेंट्स एंड इसमें बहुत सारे वर्टिकल्स भी हैं. आपको समझ में आएगा कि सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट में आप एक चीज नहीं सीख के खत्म हो जाएगा आपका इंटरेस्ट या आपका एरिया ऑफ एक्टिविटी, लेकिन इसमें बहुत कुछ और आपको समझ में आएगा जिसमें आप और काम करना चाहेंगे. सो दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस इंडस्ट्री. एज ऑन 2019, यू नो, एज पर अ रिपोर्ट बाय अर्नस्ट एंड यंग, हमें ये पता चला है कि 16,000 करोड़ से भी ज्यादा इसका प्रॉफिट है इवेंट मैनेजमेंट का. दैट इंक्लूड्स ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड players in the event industry. तो हम लोग के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं. इस अपॉर्चुनिटी को हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? वो ऐसे अंडरस्टैंड करेंगे कि इवेंट मैनेजमेंट में अलग अलग सेक्टर्स हैं. जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं. ये एक तरह के इवेंट्स होते हैं जिसमें आपके कंपनी का लोगो, आपके कंपनी का नाम या आपके कंपनी का जो भी है, जैसे आपका फॉर्मेट है, नेम है, लोगो है, कॉन्सेप्ट भी जो है, इट इज होली और पार्टली ओन्ड बाय द कंपनी. तो जैसे इसमें आपका जो IIFA अवार्ड्स है, इंडिया बाइक वीक है, सनबर्न है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के, जो कि आप टीवी में देखते हैं, मैगजीन्स में पढ़ते हैं. IPL भी है. सो ऑल दीज आर, जैसे आपका जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है, मुझे याद आता जा रहा है, इंडिया ब्राइडल वीक हो गया, ये सारे जो है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कहलाते हैं. फिर आपका आ गया है कॉर्पोरेट इवेंट्स एंड MIC. MIC मीन्स मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस. जैसे आपके ब्रांड लॉन्चेस है, डीलर मीट्स हैं. दीज आर द बिजनेस एंड कॉर्पोरेट काइंड ऑफ इवेंट्स. आपके एग्जीबिशंस भी हो गए हैं. सो दे आर एक्चुअली मैनेज्ड बाय एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और दे आर डन ऑन बिहाफ ऑफ अ थर्ड पार्टी हु ओन्स द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ दैट इवेंट. तो ये इधर भी आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे. देन सोशल एंड कल्चरल इवेंट्स, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट्स यू सी अराउंड यू ऑल द टाइम. You have been a part of these events. These essentially cover weddings, birthday parties हो गए, festivals, fairs, anniversary celebrations हो गए, regional events हो गए. So all these are covered in social, cultural events, sports and entertainment events. आपके जो local sports और marathons हैं, वो भी बड़े पैमाने पे ऊपर आ रहे हैं. इनको भी आजकल बहुत ज्यादा एनकरेज किया जा रहा है थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल. उनके अलग अलग जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, उनके तहत भी ये सारे इवेंट्स प्रमोट किए जा रहे हैं ताकि लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े और हमारा जो है नेशनल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में भी इनका बहुत बड़ा योगदान होता है. देन वी कम टू डिजिटल इवेंट्स, मैनेज्ड इवेंट्स एंड एक्टिवेशंस. सो डिजिटल इवेंट्स आर बेसिकली increasing in India because of smartphone penetration. You know, ये बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि आजकल कोविड पीरियड में भी इनकी बहुत ज्यादा अहमियत हो गई है. इससे क्या होता है कि आप लोग एक कॉमन डिजिटल एनवायरनमेंट में एक साथ जुड़ जाते हैं और आप एक जगह पे पहुंच नहीं पाते हैं, बट यू कैन नॉट बी फिजिकली प्रेजेंट इन द सेम लोकेशन, बट यू आर कनेक्टेड टुगेदर थ्रू
internet through these digital events. So, largely advertisers are beginning to look at such events, क्योंकि ये fraction of a cost में भी किए जाते हैं as compared to live face-to-face traditional events. फिर आपके हो गए मैनेज्ड इवेंट्स एंड एक्टिवेशंस. ये आपके जो प्रमोशंस होते हैं रूरल एरियाज में भी हो जाते हैं, जैसे सोलर लैंप्स हो गए हैं, सोलर एलईडी लाइट्स हो गए हैं, सोलर लाइट्स हो गए हैं, सोलर पैनल्स हो गए. इनकी जो प्रमोशंस होते हैं, इनको जो बेचते हैं, फिर इनके जो आपके मॉल्स में एक्टिवेशंस होते हैं, आपने देखा होगा कोई प्रोडक्ट लॉन्च या एक्टिवेशन होता है मॉल्स में, तो ये अपने आप से नहीं हो जाते हैं. ये इवेंट कंपनीज, इवेंट फर्म्स, इवेंट एजेंसीज जो हैं, ये कैरी आउट करते हैं, एंड दे आर customized for the clients for which the event management company carries out the event, and they are also customized for the audience who attends these events. उन्हीं के लिए ये events carry out किए जाते हैं. Then of course rural and government events, there's a lot of opportunity in rural marketing, जैसे कि मैंने अभी बताया था. तो जैसे below the line activations होते हैं. बिलो द लाइन एक्टिवेशंस मतलब जो कि एक लोकल लेवल पे हो जाते हैं और उतनी फॉर्मल लेवल पे नहीं होते हैं, बट एट अ वेरी इनफॉर्मल, इतने ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन की उसकी जरूरत नहीं होती है. फिर हमारे गवर्नमेंट इवेंट्स होते हैं, जैसे आपका मेक इन इंडिया कैंपेन है, स्किल डेवलपमेंट के लिए जो कैंपेन्स होते हैं, टूरिज्म के लिए होते हैं, जैसे नारी चेतना प्रोग्राम हो गया साहित्य अकेडमी का, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस हो जाता है, कभी कोई ग्लोबल एग्जीबिशन ऑन सर्विसेज हो जाता है, स्मार्ट सिटी सर्विसेज हो जाते हैं, जैसे आपका सूरत स्मार्ट सिटी हो गया या डिजिटल राजस्थान हो गया. तो इस तरह के बहुत सारे आपका मेक इन इंडिया था. ऑल दीज आर गवर्नमेंट इवेंट्स जिसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट्स, इवेंट कंपनीज या इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट इवेंट मैनेजर्स को कांटेक्ट करते हैं. एंटरप्रेन्योर्स को कांटेक्ट किया जाता है ये ऐसे इवेंट्स के लिए. So that is about briefly talking about the scope of events. But let me, before I proceed, tell you why management of events is becoming so important today. It's because events, like I said, is a business of experiences. ये एक अनुभव का व्यवसाय है और इससे बहुत ज्यादा लाइव और मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस होते हैं. जैसे आप कोई भी इवेंट अटेंड किए हो, आपको उसका बहुत पॉजिटिव फीलिंग आता है, इम्पैक्ट रहता है, तो आपको जिंदगी भर याद रह जाती है उस इवेंट के काफी पल. तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. इसका मतलब वो इवेंट जो है वो सक्सेसफुल रहा है. सो आजकल लोगों के पास बहुत ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम्स भी हो गए हैं और विलिंगनेस भी स्पेंड करने के लिए बढ़ गया है. वो खर्च करना चाहते हैं इवेंट्स के लिए. तो इसीलिए आजकल पर्सनल इवेंट्स में भी वेडिंग्स हो गए, आपके एनिवर्सरीज हो गए, ये सारे जो हैं ये बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं और लोग जो है इवेंट मैनेजर्स को कांटेक्ट करते हैं ताकि वो आप उनके लिए इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें. So now coming to the diploma in event management, why are you here and what is so important about this diploma? See, it has been realized by the industry experts, event industry के लोग भी ये अब समझने लगे हैं कि अभी इस एरिया को प्रोफेशनलाइज करना बहुत जरूरी है. सो दे रियलाइज दैट जब हम ये डिप्लोमा प्रोग्राम डिजाइन कर रहे थे इग्नू में, तो हमने इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को बुलाया, ना ही सिर्फ IIM के फैकल्टी को और दूसरे फैकल्टी को जो अलग अलग इवेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं. हमने इवेंट इंडस्ट्री के लोगों को भी बुलाया था जिन्होंने ये कहा कि एक प्रोफेशनलाइज करने के लिए हमें एक डिप्लोमा की जरूरत है थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड, जिसमें आप इग्नू के तहत ऑफर कर सकते हैं ऐसा एक डिप्लोमा प्रोग्राम. और उसमें ये बताया गया कि जैसे बहुत ज्यादा नॉलेज और प्रैक्टिस की जरूरत है, जिसमें जैसे कोई भी गैप हो इंडस्ट्री में, उस गैप को कम करने के लिए ना उद्योग विशेष जनों के द्वारा उस तरह के पाठ्यक्रम हम तैयार करें.
तो उसमें हमने डिजाइन किया ये प्रोग्राम, और उसमें हमने क्या सोचा कि इसमें अभ्यास में भी प्रासंगिक जोर देना चाहिए, इसीलिए हमने इसमें सारे सारे एस्पेक्ट्स डाले हैं जिससे हम नॉलेज और प्रैक्टिस जो है मर्ज कर सकें। नॉलेज यानी कि ज्ञान, और प्रैक्टिस जो कि आपको दोनों के साथ कंबाइन होगा, उस तरीके से हम इस करिकुलम को डिजाइन करें। सो इट विल नॉट बी जस्ट थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग बट ऑल्सो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, जिससे आप और अच्छे प्रोफेशनल्स बने। ये नहीं कि आप कुछ पढ़ के एग्जाम दे के आप निकल लें, ऐसा नहीं। फिर इसके साथ साथ हमने प्रतिष्ठित लेखकों के द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद मांगी, उनसे उनके भी इनपुट्स मांगे, और फिर हमने इसके कंटेंट को बनाने में काफी टाइम लगाया, और उस तरह की सामग्री को हमने इकट्ठा किया, और उसके बेसिस पे हमने कंटेंट को लिखा। उसके बाद जैसे साथ साथ जैसे इंडस्ट्री के इंसाइट्स भी हमने इसमें यूज किए। सो वी डिसाइडेड टू कीप अ लॉट ऑफ एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज, कैसे हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जैसे आपकी थियोरी है, आप कंटेंट देखेंगे, आप स्टडी मटेरियल देखेंगे, तो उसमें रुक रुक के हमने इन टेक्स्ट एक्टिविटीज डाले हैं जो कि एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज है, जो आप खुद इंटरेस्ट लेके करना चाहेंगे, आप इच्छुक होंगे। सो दैट इज वन ऑफ द objectives of this diploma program, that you find this diploma interesting as you learn the subject. So we have print materials and audio video programs in this diploma program, जो कि आपको हार्ड कॉपी में ही नहीं, आप ई ज्ञान कोश से भी आप हासिल कर सकेंगे। वो आपको आपके रीजनल सेंटर से भी लिंक्स मिल जाएंगे। आपका एक बहुत अहम एस्पेक्ट जो है, एक नहीं बल्कि दो एस्पेक्ट्स हैं, वो है इंटर्नशिप और प्रैक्टिकम, जो कि इस डिप्लोमा में, मैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल में अभी बताऊंगी। और जो इस डिप्लोमा में है, प्रिंट मटेरियल्स और ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स के अलावा जो है, वो आपको कंटेंट में इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के वेबसाइट्स मिलेंगे, और आप खुद भी एक्सप्लोर कर लेंगे इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज के वेबसाइट, जो एजेंसीज हैं जो आपके स्टेट में हैं, जो आपके सिटी में है, उनके साथ आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं कॉन्टैक्ट, और हर लोकेशन पे आप इसको ये पढ़ सकते हैं। उस तरीके से आप ऑडियो प्रोग्राम्स, जो आपका रेडियो प्रोग्राम्स हैं, इंटरैक्टिव रेडियो काउंसलिंग के तहत या टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के तहत, जो रेडियो काउंसलिंग है वो ज्ञानवाणी से होता है, और ज्ञान दर्शन से आपको उपलब्ध किया जाएगा मोर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट दिस डिप्लोमा। ये सब आपके लर्नर स्टडी सेंटर्स के, जहाँ पे काउंसलिंग होगी, जहाँ पे आपको बुलाया जाएगा, या आप ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, उसके अलावा उसके ऊपर आपको ये ज्ञानवाणी और ज्ञान दर्शन से, IRC इंटरैक्टिव रेडियो काउंसलिंग और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग से भी नॉलेज और इंफॉर्मेशन मिलेगा। देन ऑफ कोर्स केस स्टडीज हैं आपके पूरे लर्निंग कंटेंट में, स्टडी मटेरियल में भर के केस स्टडीज हैं। इसमें मैंने ये किया था कि मैंने बहुत सारे इवेंट मैनेजर्स, जो टॉप इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, उनको मैंने कांटेक्ट करके उनसे इंटरव्यू लेके वर्बेटियम आई गॉट केस स्टडीज डन फ्रॉम देम। तो वो जो है हमने छाप दिया है आपके स्टडी मटेरियल में, ताकि आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आए, और आपको लगे कि हाँ, ये कुछ हम अच्छे से हमें समझ में आना है। सो ऑल दिस इज बीइंग डन टू रीइंफोर्स लर्निंग टारगेट्स, जो आपके सीखने के लक्ष्य हैं, उनको हम मजबूत करना चाहते हैं। इसके लिए आपको हम ये सारे एक्सपीरियंसेस लर्निंग मटेरियल में हमने डाले हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, और आपको एनकरेजमेंट और मोटिवेशन भी हो कि आप भी इनसे कभी जुड़ सके, ये इंडस्ट्रियल जायंट्स से, या आपके सिटीज में और स्टेट्स में। Now, one very important aspect of this diploma is submission of assignments.
इंटर्नशिप रिपोर्ट एंड प्रैक्टिकम वर्कबुक। अगर आप ये तीनों नहीं करते हैं तो आपको डिप्लोमा नहीं मिल पाएगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही चीजें हैं जिससे आप, यही एक्टिविटीज और एक्सरसाइजेस हैं जिससे आप इंडस्ट्री रेडी हो सकेंगे। आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलने से ही आपको इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज भी लेने में खुश होंगे। सो नाउ कमिंग क्विकली टू द प्रोग्राम स्ट्रक्चर। इस प्रोग्राम स्ट्रक्चर में 5 थ्योरी कोर्सेस हैं और उसके अलावा एक इंटर्नशिप है और एक प्रैक्टिकम है। जो 5 थ्योरी कोर्सेस है उसमें पहला थ्योरी कोर्स है BHC 011। हर कोर्स का एक कोड होता है इग्नू में, और पहले कोर्स का नाम है बेसिक्स ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। सेकेंड कोर्स इज कॉल्ड इवेंट प्लानिंग, BHC 012। Third course is called Event Coordination and Control, BHC 013. The fourth course is called Event Marketing and Promotion, BHC 014. The fifth course is called Event Financing and Accounting, BHC 015. The sixth course is Internship and the seventh course is Practicum. इनके भी कोड्स दिए गए हैं। Now, आप यही प्रोग्राम अगर किसी बाहर के इंस्टीट्यूट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करते हैं, जो कि आपको 3 से 4 लाख चार्ज करते हैं फीस, उसमें आपको ये कोर्स फॉर इवेंट मार्केटिंग एंड प्रमोशन, इवेंट फाइनेंसिंग एंड अकाउंटिंग आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा, बिकॉज दीज थिंग्स are not considered important by many institutes across India. Whereas when we were designing this program, the industry experts and senior professors of different universities said that understanding of event marketing and promotion should be a very comprehensive part of this program. Event financing and accounting, वो तो event companies में financiers और accounting वाले होते हैं, लेकिन आपको एज एन इवेंट मैनेजर या प्लानर जानना बहुत जरूरी है कि फाइनेंसिंग एंड अकाउंटिंग में क्या होता है। तो इससे आपको एक होलिस्टिक नॉलेज मिल जाता है टू एंटर द इवेंट इंडस्ट्री। सो कमिंग टू बेसिक्स ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, हर थ्योरी कोर्स, जो 5 थ्योरी कोर्सेस हैं, ये 4-4 क्रेडिट्स के हैं। तो जो पहला कोर्स है बेसिक्स ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, इसमें पहला ब्लॉक है इंट्रोडक्शन टू इवेंट मैनेजमेंट, दूसरा ब्लॉक है इवेंट मैनेजर, उनके क्या रोल रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें खास तौर पे खुसूसन आपको बताया जाएगा कि इसमें एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज क्या, कल को आप एक एंटरप्रेन्योरशिप, एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं इवेंट मैनेजमेंट में। सो दीज आर द एसेंशियल सॉफ्ट स्किल्स एंड लाइफ स्किल्स which are required to become an entrepreneur of event management. Then, of course, the third block, the third book in this course is establishing an event management company. And these are the areas which we'll closely touch upon, that is business opportunity search. कैसे हम एक व्यवसाय को खोजेंगे इस इवेंट मैनेजमेंट में, और उसको कैसे प्लानिंग करेंगे, बिजनेस प्लान कैसे करेंगे, हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज एन इवेंट कंपनी, एंड व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो आपका सेकेंड कोर्स है वो है इवेंट प्लानिंग, 4 क्रेडिट्स का है। कई जगह पे, कई इंस्टीट्यूट्स में सिर्फ इवेंट प्लानिंग का ही एक कोर्स हो जाता है, तो यहाँ पे भी हमने उसी तरीके से इसको शेप किया है, डिजाइन किया है कि इवेंट प्लानिंग कैसे होना चाहिए। जैसे हाउ टू डू फीजिबिलिटी असेसमेंट ऑफ द इवेंट, क्लाइंट्स को हम कैसे पहचाने, कैसे ढूंढें, किस तरीके से बोली घटक और मानदंड करें, यू नो, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इवेंट प्रपोजल, इवेंट का प्रस्ताव कैसे रखा जाता है, एंड उसी तरीके से इवेंट प्लानिंग प्रीरिक्विजिट्स में लॉस क्या है, परमिट्स क्या है, लाइसेंसेस क्या है इवेंट मैनेजमेंट के लिए, जो आपका जो जोखिम प्रबंधन है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसके पॉलिसीज क्या हैं, नॉर्म्स क्या हैं, आपको एक इवेंट कंपनी में कैसे डालने चाहिए, इसका प्रोसेस क्या है, रिस्क मैनेजमेंट को कंट्रोल करना कैसे जरूरी है। जैसे अपने बड़े बड़े इवेंट्स में कभी कभी क्राउड कंट्रोल नहीं होता है, या स्टैम्पीड हो जाता है, फायर्स हो जाते हैं, इस तरह के बड़े बड़े रिस्क और छोटे छोटे रिस्क जैसे एक्सीडेंट्स होते हैं, इनको कैसे कंट्रोल करना है, इसकी मॉनिटरिंग कैसे करनी है। Then of course event planning process कैसे होता है, right from the
time of designing, how the planning is done, फिर मानव संसाधन की योजना कैसे की जाती है, रसद की योजना कैसे की जाती है, उसमें कैसे गुणवत्ता प्राप्त की जा सकती है, ये सारी चीजें आपको बताए जाएंगे इवेंट प्लानिंग प्रोसेस में. Then we come to the third course, which is event coordination and control. So in event coordination and control, क्या-क्या event process में शुरू से लेके last तक, conceptualization से लेके implementation, फिर shutdown of the event, the tearing down, bringing down the event, closing the event, how all this is done from A to Z, that is taught. What is meant by staging of events? What is celebrity management? मैम आपकी आवाज बंद हो गई है थोड़ी सी. टाइम माइक म्यूट हो गया. Ma'am, you are not audible. Aspect. Please wait. There is some technical glitch. Ma'am will be very soon. She will be available. Maybe some technical glitch from her end. Hello, can you hear me? Yes, ma'am. Yes. Now we can. Yes, ma'am. Now you can hear me. Okay. So would you like me to start from where I was not heard or understood? Or should I go ahead? Ma'am. And please explain the celebrity management thing again. Okay. So see, in this particular course, that is event coordination and control, am I audible now? Yes, ma'am. Okay, so in this particular course, this is also a very important course. We are taught as to how we stage events, where how the event concept, the event design is, practically implemented, what kind of seating arrangements are there, what kind of aesthetics are applied, and what kinds of things are done for the production of an event experience. So whatever logistics are there, how they are applied, how celebrity management is done, how do you, in what kind of events do celebrities get called, and so on. And then, of course, catering management, where we are not just taught about food and beverage, but also the different food service styles for VIPs, for the audience. And we are not just talking about how food is served, but also the nutritional aspects, because in many events, we need to look after the nutritional aspects of the audience who are in attendance. Then, of course, technology and equipment of events, where you use a lot of 360-degree technology for the pyrotechnics that are used and much more. So all these are very, very important to know in events. Then we come to event control and evaluation. Often many एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो इवेंट मैनेजमेंट के डिप्लोमास दिए जाते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास दिए जाते हैं, उसमें इवैल्यूएशन बिल्कुल पढ़ाया नहीं जाता है. बट इवैल्यूएशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट. इसका इवैल्यूएशन सिर्फ इवेंट खत्म होने के बाद नहीं, लेकिन इवेंट के चलते चलते, while the event is happening, it is very, very essential to evaluate events. So all this is taught, and how to monitor media coverage during events, that is also important. Right reporting, wrong reporting, how to face a calamity, and how to report to the media when a calamity in an event occurs. So all these are very, very important. How you use technology in events can also cover, technological events, innovations like you could say virtual reality. Nowadays we use Oculus Rift, we use robotics, brain mapping, QR codes, photo booths. All these are innovations that are leading to agencies to do something innovative. So once you complete this diploma, you will be a part of
the event industry, which covers all this: holographs, virtual reality, fancy digital standees, all these are used in events. So much more of these are used in special events like business events, social events, weddings and cultural events, entertainment events, sports events. तो इनको हमने एक separate block में डाला है called special events, because these events need a lot of professional skills. That's why these have been covered as a special block. Then we come to the fourth course, event marketing and promotion. Like I said, this is an area which is very, very integral to event management. You'll be taught the basics of marketing concepts, the fundamentals, marketing environment क्या होता है, उसमें जैसे कैसे हम उसको कंज्यूमर बिहेवियर के लाइट में समझ सकते हैं, मार्केटिंग को हम एक पर्टिकुलर इवेंट को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, और बहुत कुछ ये ब्लॉग में पढ़ाया जाता है. उसी तरीके से इवेंट मार्केटिंग को कैसे अप्रोच करते हैं, पहले अपॉर्चुनिटीज को कैसे देखते हैं, मार्केटिंग कैसे करना है, उसको स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है, फिर कैसे ब्रांडिंग और पोजीशनिंग ऑफ इवेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है. कई इवेंट्स जो हैं दे हैव टू बी पोजीशनड एंड रीपोजीशनड, दोबारा उसको एक फेस लिफ्ट देना पड़ता है उस प्रोडक्ट को. तो वो सब हम इवेंट्स के जरिए प्रोडक्ट्स को ब्रांडिंग करते हैं, पोजीशनिंग करते हैं, और इवेंट्स की भी खुद की पोजीशनिंग होती है अलग लेवल पे. तो इसको हमने बहुत डिटेल में कवर किया है. ऑफ कोर्स इवेंट प्रमोशन, इसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते. That is essential, like advertising of events, brand building, sales promotion, digital marketing, personal selling, ये सारी चीजें cover होती हैं. Then we come to the last theory course, which is event financing and accounting. This is very, very important for all of you to understand, because marketing and financing go hand in hand. So ये एक अलग कोर्स के तौर पे हमने प्रेजेंट किया है, बट आप घबराइए मत, इसका लैंग्वेज बहुत ज्यादा सिंपल है ताकि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए. इवेंट फाइनेंसिंग है, इवेंट प्राइसिंग है, how sponsorships are brought in, how we develop a good relationship with the client for sponsorships, and so on. And then of course with the sponsors as well. Then event budgeting, how do you cover logistics, how do you cover staging, and much more. इवेंट अकाउंटिंग भी पढ़ाया जाता है, जहाँ के बेसिक बातें अकाउंटिंग की होती है. बुक कीपिंग है, अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं. उसके बाद इवेंट टैक्सेशन क्या होता है, व्हाट इज जीएसटी, व्हाट आर द अदर टैक्सेस दैट हैव इम्प्लीकेशंस ऑन द इवेंट इंडस्ट्री, ऑडिटिंग क्या होती है, वो उससे पहले पढ़ाया जाएगा. So with this, we complete all the 5 theory courses of event management. And then we come to internship. Internship को बहुत ज्यादा वेटेज 8 क्रेडिट्स का दिया गया है, तो आपको इंटर्नशिप किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है. So जो भी घटना प्रबंधन के व्यावहारिक उद्यम हैं, उनके लिए जो भी सैद्धांतिक आधार आपको लागू करना है वो इंटर्नशिप में पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है. इवेंट इंडस्ट्री अनुभवों का उत्पादन होता है. तो यू हैव टू बिल्ड एन इनसाइट ऑन टू जो भी रसद है, मनोरंजन का प्रबंध है, प्रौद्योगिकी की प्रबंध है, जो भी है, आपको उस पर बहुत ज्यादा तवज्जो देके काम करना होगा. उसी तरह से प्रैक्टिकल्स में भी आपको बहुत ज्यादा जो है फोकस करके काम करना होगा. So let me tell you a little more about internship. What are the objectives of an internship course? Like I said, applying theoretical grounding to practical study. You understand event characteristics, that events are unique, they are perishable, they have a fixed time scale, no event is permanent. You develop an understanding of the event planning and design as the production of event experiences. You build an insight into managing the event process in the context of managing equipment, technology, logistics, multimedia, entertainment, and much more. तो ये सारा जो आप internship के activities करेंगे उसमें cover हो जाएगा. You'll develop entrepreneurial risk management, financial management, and evaluation skills. This is a major objective of the internship course, to understand event management, to understand the legal framework that events operate within,
क्या क्या परमिशंस आपको चाहिए, एनओसीज चाहिए to serve liquor also in the night or to play loud music in the night, what kind of permissions you need, whether you need it from the district authorities or from your own dad. You will come to know about this in the internship course. Then how you use event as a strategic communication tool. आप event management को एक communication and marketing tool की तरह events, sorry, not event management but events को आप यूज करते हैं. वो कैसे यूज करते हैं वो आपको पता चलेगा. How it can be a customer focused marketing tool and relationship building tool. You'll be able to utilize the skills gained from this course for fulfilling the needs of the contemporary event industry. Now, how do you conduct internship? You might get some leads to work in an event management company or agency from your study center. You can ask at your study center, but at the same time, what many students are doing is they are contacting event companies by Googling up, because they get, when you Google up for event agencies or event companies in your region, you will get more than 100 to 200 names of event companies. So you can find out whether the event company is a registered event company or a firm, and you can contact them. You can complete your internship anytime from 1 month to 3 months, because you cannot say that you will complete within 1 month or 2 months. Sometimes the internship gets over in 3 to 4 weeks itself, or sometimes it gets over in 4 months. क्योंकि आप सीधे प्लानिंग, कंसेप्चुअलाइजेशन और प्लानिंग स्टेज से इवेंट के खत्म होने तक एंगेज होते हैं, तो कभी कभी 2-3 महीने लग जाते हैं, और वो डिपेंड करता है कि आप कौन से इवेंट में हैं. If it is a very big VIP event which is taking a long time to plan, it's a big event, large scale event, then of course. Otherwise, if it's a small scale event, it might take a smaller time. So when you prepare for your internship, when you're doing your internship, you have to put everything in a file. And whatever internship work is there, it has to be submitted in the form of a file. आपको खुद एक फाइल तैयार करना होगा, खरीदना पड़ेगा, और उसमें आप अपना इंटर्नशिप की एक्टिविटी आप लिखते जाएंगे. तो देयर यू विल हैव टू लुक फॉर एन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग एरियाज. इनमें से कोई एक आप चूज कर सकते हैं, कोई एक स्पेशल इवेंट या कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड इवेंट या एक्सपीरियंशियल इवेंट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. And then you have to submit. How you're going to write it, I'll just tell you. Then you have to submit the internship file for evaluation. The first level is external evaluation, जो कि आपको इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में जिसमें आप काम करते हैं, आपको जो सुपरवाइज करेंगे इवेंट मैनेजर, वो आपको 70 में से मार्क्स देंगे. उसके बाद आप वो फाइल, जब आपके मार्क्स चढ़ जाएंगे बाय द सुपरवाइजर ऑफ द इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, आपको सर्टिफिकेशन हासिल करना बहुत जरूरी है. और फिर आप उसको एक फाइल को एक कवर में डाल के आप इग्नू हेडक्वार्टर्स में भेजेंगे. 30% इवैल्यूएशन जो बाकी का है उसके लिए वो आप बाय पोस्ट भेजेंगे. और फिर उसके बाद आप जब प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, प्रैक्टिकल के लिए, अच्छा आपको इंटर्नशिप के बारे में बता दूं, इसके लिए आपको एक मैनुअल मिलेगा. यू विल गेट अ मैनुअल टू कंडक्ट इंटर्नशिप. उसमें आपको गाइडलाइंस दिए हैं कि प्री इवेंट एक्टिविटीज क्या है, ड्यूरिंग द इवेंट क्या क्या एक्टिविटीज हुए, प्री इवेंट में आपकी प्लानिंग आ जाएगी, ड्यूरिंग द इवेंट में क्या क्या आपने इम्प्लीमेंट किया है, एंड देन क्लोजिंग द इवेंट, द थर्ड स्टेज, पोस्ट इवेंट एक्टिविटीज. तो स्टेप बाय स्टेप आपको मैनुअल में दिया गया है कि कैसे आपको इंटर्नशिप करना है. And it is not difficult at all. It has been explained very easily. And उसमें ये भी लिखा हुआ है कि इंटरनल इवैल्यूएशन जो है, एक बार आपने इवेंट कंपनी में कर लिया है, सर्टिफिकेशन और मार्क्स हासिल कर लिए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से, तो इंटरनल इवैल्यूएशन के लिए कौन से एड्रेस पे भेजना है आपकी फाइल को लिफाफे में डाल के, वो भी उस मैनुअल में आपको दिया गया है. देन फॉर प्रैक्टिकल एक्टिविटीज यू हैव टू, एक वर्कबुक ऑलरेडी दी गई है, वो वर्कबुक को आपको फिल करना है. वो सीधे वर्कबुक को किसी को दिखाना नहीं है, इवेंट कंपनी को भी नहीं दिखाना है. और ये वर्कबुक आप तब फिल करेंगे जब आप इंटर्नशिप करें, साथ साथ आप ये वर्कबुक को भी फिल कर सकते हैं. दीज पर्टेन टू योर लेसन्स, उसमें बहुत इजीली
और क्लियर लैंग्वेज में गाइडलाइंस दिए हैं हर एक्टिविटी के आगे कि कौन से लेसन को पर्टेन करना है जो आपके थियोरी में है, और उस हिसाब से आप इवेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे या आप किसी इवेंट में जाके आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं अलग अलग एक्टिविटीज के लिए, और उस वर्कबुक को आप फिल करेंगे. सो बेसिकली प्रैक्टिकम इज ऑफ 4 credits, but it gives you an exposure to the world of events through different case studies. You can understand event designing in detail. You can understand what kind of technology and its role in what kind of innovation was used in events. You have to conduct a post-event consumer survey. कि क्या हुआ? How did you conduct the consumer survey? Was it through head counting or through the hashtags which were used on social media? How you're going to do? Everything is given in your workbooks and in your theory. तो आपको बहुत कुछ चीजों का अनुभव हो जाएगा through practical activities. So these can be done by visiting events in your city, state, or by watching on YouTube, Facebook, and television as well. So before starting your practical activities, you have to carefully read all the activities. पहले सारे पढ़िए, जल्दी में एक एक करना शुरू मत कर दीजिए. हर एक्टिविटी को पढ़िए बराबर, क्योंकि जल्दबाजी में मैंने देखा है कई बच्चे जो हैं इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं, उनके मार्क्स कट जाते हैं. So the activities through 2, 3, 4 and 6 can be done together while attending one event. ये आपके प्रैक्टिकल वर्कबुक के अंदर भी अच्छे से लिखा गया है, तो आप उसको अच्छे से पढ़े. कई बच्चे पढ़ते नहीं है, बहुत सिंपल है लैंग्वेज, और उससे आपको वहीं पे गाइडलाइंस मिल जाएंगे, आपको किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. Then coming to assignments, you have to do one assignment per course. So there will be per theory course. सिर्फ theory के लिए होते हैं assignments, and you have to make, it means 5 assignments because there are 5 theory courses. So assignments carry 30% weightage and only 70% weightage of term and exam will be there, क्योंकि 30% weightage assignments को दिया जा रहा है. तो अगर आप assignments जमा नहीं करेंगे तो out of 70 आपको marks मिलेंगे. Then the assignments are available on website. हम बहुत जल्दी within a week 10 days assignments upload कर देंगे for July 2021 enrolled students. You can also use pictures, illustrations, and as many examples if you want from your own experiences as well in your assignments. फिर आपको ये assignments study center में submit करना है evaluation के लिए. हमारे पास या मुझे नहीं भेजना है हेडक्वार्टर्स में. कई बच्चे गलती से मुझे मेल कर देते हैं, तो दैट विल नॉट बी कॉल्ड ऑफिशियल सबमिशन, क्योंकि मैं नहीं चेक करती हूँ असाइनमेंट्स. तो आपको सीधे अपने स्टडी सेंटर्स में सबमिट करना होगा. ये आपको वो लोग भी बता देंगे, आपके रीजनल सेंटर की टीम भी बता देगी, और स्टडी सेंटर विल टेल यू. नाउ फॉर योर इंटर्नशिप एंड प्रैक्टिकम, क्योंकि कोरोना के चलते चलते बहुत बच्चे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, इवेंट्स ज्यादा ऑन द ग्राउंड हो नहीं रहे थे, बिकॉज नाउ इवेंट्स आर बिकमिंग मोर फिजिकल इन नेचर, फिजिकल एंड डिजिटल हो रहे हैं, बहुत सारे हाइब्रिड इवेंट्स आ रहे हैं. तो इसके लिए मेरा कहना ये है कि आप इसको हमने बहुत सिंप्लीफाई कर दिए. हम नए गाइडलाइंस लेके आए हैं to conduct the internship and practicum. तो वो गाइडलाइंस जो हैं वो भी मेरे पास हैं. अगर आज मौका मिला तो मैं आपको दिखाऊंगी. तो वो आप घर बैठे बैठे ही आप इवेंट्स ऑनलाइन, आप उसके टीम के इवेंट टीम के मेंबर्स बन के आप वो इवेंट्स कंडक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, और आप अपना इंटर्नशिप रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं. और यदि आपको ऐसा मौका नहीं मिलता है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, तो आप जो हैं आप YouTube में इवेंट्स देख सकते हैं, और उसके तहत आप अपने रिपोर्ट को फाइल इवेंट्स को देख सकते हैं, उसको इंटर्नशिप फाइल में रिपोर्ट बना के डाल सकते हैं, और उसको आप सबमिट कर सकते हैं. So to do internship and practicum on your own based on the new guidelines in which you are facing restrictions, आप बाहर जाके इवेंट कंपनीज के साथ ऑन द ग्राउंड अगर कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है.
अगर नहीं कर सकते हैं तो फैसिलिटेटिव गाइडलाइंस आप फॉलो करें। उसमें उसके लिए आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स जो हैं वो इवेंट मैनेजमेंट के समझने होंगे, आपको इवेंट्स को विजिट करना होगा यूट्यूब में। सेकेंडली, प्लीज बिकम फ्रेंड्स विद इवेंट एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसको कहते हैं ईमा। फेसबुक में आप फ्रेंड्स बन जाएं, उसके अलावा आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक एक्टिविटी जो है वो आपको ईमा के साथ करनी है फेसबुक के तहत, वो इंटर्नशिप में है। तो वो अगर आप फेसबुक में नहीं है, आपको फेसबुक यूज करना नहीं आता है, you can take help of any of your friends and through their help you can get into the Facebook page of EMA, Event and Entertainment Management Association। वो सारा आपको मिल जाएगा फैसिलिटेटिव गाइडलाइंस में। यू कैन सब्सक्राइब टू eventfacts.com फॉर इंडस्ट्री वॉच। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको हर चीज लेटेस्ट जो इवेंट इंडस्ट्री में हो रहा है वो आपको पता चल जाएगा। यू हैव टू विजिट वेबसाइट्स ऑफ ईमा एंड रूरल मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ऑल्सो, यू कैन विजिट RMAI, जो कि आप रूरल एरियाज में जो बच्चे रहते हैं या रूरल फ्रिंजेस में रहते हैं, रूरल पेरिफेरीज में, उनके लिए भी आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि रूरल एरियाज में भी बेहद इवेंट्स होते हैं, तो आप उनके साथ जुड़ सकते हैं, उनके साथ बल्कि जुड़ने में आसानी भी होगी। सो with that, I come to the end of my presentation. But before I end, please note down my email ID so that whenever you have any problem, you can reach out to me easily. And before I end, I just want to tell you certain things that आपको घबराना नहीं है। वो क्या चीज है जो स्टूडेंट्स के अंदर इवेंट कंपनीज देखते हैं, वो आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है। What are the things that event companies look for in students is very, very important once you complete the course. These are certain tips which I want to give you. What I'm trying to say here is, do not always stick to only one part of event management, that is client servicing. कई बार क्या होता है, बच्चे सोचते हैं कि हमें क्लाइंट सर्विसिंग, क्लाइंट्स के को कैसे आप इवेंट्स बना के देंगे वो जरूरी है, या क्लाइंट्स को कैसे आप ढूंढ के निकालेंगे। सिर्फ वही चीज नहीं, आप और कई बच्चे हम ये सोचते हैं बच्चों में से कि यू नो इट्स अ वेरी वेरी ग्लैमरस इंडस्ट्री, इवेंट इंडस्ट्री, बट don't be so fascinated by the glamour or the celebrity who are there in the industry. Event is more about logistics, how you get all the logistics and elements of production together to generate an event. So it is very very important कि जब कंपनीज बच्चों को ढूंढते हैं जो इवेंट कंपनीज ज्वाइन करना चाहते हैं, सबसे पहले what they look for look in a person is whether you have done any studies in event management. तो प्लस पॉइंट आपका ये रहेगा कि आपने डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट किया है. So these companies, they look for people who have done event education. And are you updated on latest events? आपके अंदर एक स्पार्क होना चाहिए. जब आप एक इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आप एक एक्सपीरियंस छोड़ जाइए उस इंटरव्यू में. क्रिएट एन इम्प्रेशन ऑन द पर्सन्स माइंड, ऑन योर interviewee's mind, interviewer's mind. What the interviewer is looking in you, that should be visible in you. And बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अरे मुझ में तो क्रिएटिविटी है ही नहीं, मैं कैसे ये करूंगी. तो लेट मी टेल यू कि मेरे अंदर भी क्रिएटिविटी नहीं है. मैं तो एक फैकल्टी हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मेरे अंदर भी क्रिएटिविटी पहले नहीं था. But धीरे धीरे what happens is over the years you develop skills, and it might take not just a year, it might take just a couple of months. You have to stop thinking that creativity एक watertight compartment है, बस मुझे तो आता नहीं creativity तो मुझे कौन लेगा. ऐसा नहीं है. You can develop certain techniques. You can start thinking how you can do certain things. You can apply your
skills, whatever you learn in this diploma program, to develop certain skills and techniques to work in this profession. Still you can think of certain ways and techniques to ideate. So it takes time. It is not so, it is a mental skill. आइडियाज किसी के अंदर भी आ सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएंगे वो भी एक आइडिया बन जाता है. तो आपको जरूरी नहीं कि आप ये सोचें कि मैं, अगर आप 4-5 डॉट्स को भी कनेक्ट कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी. सो क्रिएटिविटी, आइडिएशन, आप थिंक करेंगे, आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा इस प्रोफेशन से. सो creativity, ideation, and really working hard, is the DNA of the event management profession. So with this, I'd like to close my presentation, and I'm stopping to share. Thank you so much, ma'am, for your very vivid presentation for the students. Pandey sir, can we start the question answer session, or we should deliberate something more? We can certainly have a question answer session, because Professor Hina Bijli will not be having enough time to stay with us for a long time. So what we can do is that we can invite questions, and then we can request her to please respond to the question. Sir, I would like to add that with us is Dr. Subhash Ranjan Nayak, Dr. Smriti Gargav, Dr. Harish Kevat from RC Jabalpur, and other colleagues from different RCs. So we would like to start the question answer session. You can raise your hand and we will start the queue, and one by one we can allow you to ask your question. Mr. Anup Chauhan has raised the hand. Anup ji, आप अपना mic on करके please अपना question पूछिए. Good morning, everyone. Good morning, sir and madam. I want to ask you, can we join the internship from this month? I think you can start, because the wedding season has started. Because no matter what, whether we have corona or not, weddings will remain and they'll continue to grow, the wedding sector. So that is one vertical you could look at. Second is you could look at sports events also. You could look at some corporate events also. So certainly you can start now. But before you start your internship, you can, I would suggest you read up your study material. And once you gain a deeper understanding of the different concepts, then you can start with your internship. Yeah. Thank you थोड़ा so much. पढ़ ma'am. लेना, because बिना पढ़े आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको करना क्या है. Yeah, I'm getting you, ma'am. And my second question is there any online or offline classes there from the my management IGNOU sites? I think the RC will be able to reply to that based on the timelines they have and the time scales they follow for academic counseling at the study center level. Mr. Yeah. Anup Chauhan, and for the benefit of all the other students, let me tell you that we'll work out a program, complete detailed program of counseling, and we will send it to you. And we will send a copy to all the regionals and other regional centers also, because these regional center Bhopal is basically responsible for giving support services to students belonging to regional center Bhopal and Jabalpur also. But in case of other regional centers, you can contact your regional centers concerned. But from our side, what we can do is that whenever we will be holding these programs, we can send a copy to all the students. So in that case, in case you want to attend these counseling sessions, you can definitely take benefit of our programs also. So that kind of freedom we always give to our students. That is number one. Number two is that we will also be holding this IGNOU headquarters, from side of IGNOU headquarters, live interactive programs through radio and TV. And
we don't hold them very frequently, but certainly within this academic session, certainly there will be few sessions for you also. And we have so many recorded lessons, interactive programs which are recorded, and but they are available on the website of IGNOU on the eGyan course. You can watch those programs also. So we'll tell them all those facilities which are available for you in detail once this question answer session is over. Okay. Okay, thank you. Okay, sir. Thank you. नेक्स्ट इज मिस्टर कंचन निषाद. कंचन निषाद, आप अपना माइक ऑन करके प्लीज पूछें. गुड मॉर्निंग सर एंड मैम. मैम एक्चुअली मुझे पूछना था 19 को एक स्पोर्ट्स इवेंट है, तो क्या मैं उसको एज ए इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकती हूँ इन दिल्ली? आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन खाली उसको अटेंड करना एक दिन के लिए that will not be qualifying you as an internship student. You have to be engaged in the planning or conceptualization part, or you should be a part of the event team. Only then you can सिर्फ महज अटेंड करने से आपको इंटर्नशिप के मार्क्स नहीं मिलेंगे. You have to be involved in the प्रैक्टिस ऑफ इवेंट मैनेजमेंट बेसिकली. तो उसके लिए आप अपना मैनुअल पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा. और जो भी पांडे जी, आई रिक्वेस्ट यू कि जो भी लेटेस्ट गाइडलाइंस है टू कंडक्ट इंटर्नशिप, वो आप अपने वेबसाइट में डलवा दीजिएगा, सो दैट लर्नर्स कैन हैव अ लुक एट इट. एंड आप में से किसी को भी डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. बेहद सिंपल लैंग्वेज में दिया गया है, आप उसको पढ़ लें और कोई भी डाउट्स है आप प्रोग्राम गाइड में है. वैसे प्रोग्राम गाइड में है और ये स्टूडेंट देख सकते हैं, और ये प्रोग्राम गाइड वेबसाइट में ऑलरेडी है. हाँ, क्योंकि ये लेटेस्ट गाइडलाइंस है तो ये वेबसाइट में मिलेगा बच्चों को, तो आप लोग इसको देख लें. या गणेश जी, अपना माइक ऑफ कीजिए. गगन जाकू, प्लीज you can unmute and ask the question. हेलो, गुड आफ्टरनून मैम. मैम मेरे 2-3 डाउट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे कि आपने कहा कि हम ऑनलाइन इवेंट कर सकते हैं, आई मीन इंटर्नशिप कर सकते हैं. यूट्यूब से भी अब ऑफर कर रहा है इग्नू. तो आई मीन यूट्यूब से मैम कैसे पूरा, उसमें तो हमें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा ना इंटर्नशिप, तो फिर उसकी जो इवैल्यूएशन है वो इवैल्यूएशन कैसे एक्चुअली होगी? मैंने गाइडलाइंस में डाले हुए हैं. डॉक्टर पांडे, कैन आई डू अ स्क्रीन शेयर ऑफ द इंटर्नशिप? बच्चों को क्विकली मैं समझा दूं गाइडलाइंस. आई थिंक इट विल हेल्प देम. तो इनके मन में जो फियर है, कंसर्न है, मैं 5 मिनट में थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ. आई थिंक दैट वुड बी इजी एंड मेक लाइफ सिंपलर फॉर ऑल ऑफ यू. आई जस्ट डू दैट. लेट मी नो वंस द स्क्रीन इज विजिबल. दिख रहा है आपको? यस मैम. यस मैम. तो ये हमारे नए फैसिलिटेटिव गाइडलाइंस हैं इंटर्नशिप करने के लिए. इसमें हमने क्या किया है कि पहले तो आपको जो हार्ड कॉपी मिली है ना इंटर्नशिप मैनुअल की, वो आप देख लें. उसके बाद आप ये गाइडलाइंस फॉलो करें कैसे करना है इंटर्नशिप. जैसे आपके किताब में जो हार्ड कॉपी है इंटर्नशिप मैनुअल की, उसमें आप पेज 9 को देख लें तो उसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं. ठीक है, ये 4 ऑप्शंस में से आपको कोई एक इवेंट करना है, लेकिन ऑनलाइन. ये है गाइडलाइन जो हमने बनाया है बच्चों के लिए, क्योंकि कई बच्चे ऑनलाइन इवेंट्स करने में इच्छुक थे, तो हमने ये गाइडलाइन बनाया है. तो इसमें यू हैव टू रीड अप इन योर book manual how to do the activities. The report should consist of your involvement in planning the activities during the event and post event activities. जैसे एक बच्ची ने अभी मुझसे पूछा कि मैम एक स्पोर्ट्स इवेंट है, अगर वो मैं उधर जाऊं तो क्या वो
इंटर्नशिप कहलाएगा, वो नहीं कहलाएगा अगर आप उसमें प्लानिंग और इवेंट जब चल रहा है उसमें इन्वॉल्व हो और पोस्ट इवेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, तो डेफिनेटली आपको then only that will be termed as internship. So you please refer to the internship manual for details of preparing the report. The report has to be of 6 to 8 pages and should additionally consist of screenshots of this event dates. तो खाली आप कुछ लिख देंगे वो उससे काम नहीं होगा, आपको उसके फोटोग्राफ्स भी डालने पड़ेंगे, अदरवाइज मार्क्स विल नॉट बी गिवन। या फिर अगर आप ऑनलाइन कोई इवेंट में हिस्सा नहीं ले सकते हो तो आप YouTube में, जैसे आपने स्टूडेंट ने अभी पूछा मुझसे, यू वॉच एन इवेंट ऑन YouTube फ्रॉम ईच ऑफ द अबव 4 ऑप्शंस। यू कैन वॉच लैक्मे इंडिया फैशन वीक, कॉमनवेल्थ गेम्स, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, आप और भी बहुत हजार इवेंट्स मिलेंगे आपको। फिर एक टोटल आपको 4 इवेंट्स वो करने हैं। हर ऑप्शन, ऊपर के जो 4 ऑप्शंस है, ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन 1 2 3 4, ये एक्टिविटी ए में आ जाएगा। ये आपको करके उसी तरह का राइटअप बनाना है। उसमें आपको इवेंट नेम्स, गोल्स, जो आप YouTube में देखोगे, हर इवेंट जो है आप देखोगे 4 इवेंट्स, उसमें से हर इवेंट के बारे में आप इवेंट नेम, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, डिस्क्रिप्शन वगैरह वगैरह, इसमें सारे डिटेल्स दिए हैं, टेक्निकल डिटेल्स, क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी, सब कुछ। कई बच्चे क्या करते हैं, कुछ इंटर्नशिप के फाइल्स मेरे पास भी आए, एक एक लाइन लिख के छोड़ दिया। इससे आपको ये जो एक्टिविटी ए है ना, ये आपके 60 मार्क्स का है, इसमें से कई बच्चों को खाली 10 मिला है 60 में से, क्योंकि उन्होंने खाली एक एक लाइन लिख के छोड़ दिया। ऐसे नहीं होगा ना। दिस इज एन इंटर्नशिप एक्टिविटी एंड इट हैज 8 credits weightage. So please complete this activity with a lot of seriousness. तो ये part 1 है। फिर part 2, a 1-page write-up on how the event can be better organized in terms of design, sequence, activities, creativity, technology, production, audio, video, and attendance. So the report should consist of screenshots of these events and a 3-page description of each event. तो total 12 pages का ये होना है, जिसमें हर इवेंट 4 में से हर इवेंट 3 पेजेस का होगा। तो 4 into 3 is equal to 12 पेजेस का बनना है, लेकिन उसके स्क्रीनशॉट्स भी होने चाहिए। तो ये हो गया आपका एक्टिविटी ए फॉर इंटर्नशिप। अब इंटर्नशिप में एक और एक्टिविटी है कॉल्ड एक्टिविटी बी। सो जैसे मैंने कहा था आपको, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का ये फेसबुक पेज दिया हुआ है, इसमें आपको जाना है। यू चूज एनी 2 फ्यूचर रेडी वर्कशॉप्स, जो उनके वीडियोस में जाएंगे तो फ्यूचर रेडी वर्कशॉप्स आपको मिलेगा। So these workshops are by popular people from the event management sector such as Vincent Samuel, Vijay Sablo, Sukriti Sachar, इन सब के पूरे वर्कशॉप्स हैं फ्यूचर रेडी। आपको ये वर्कशॉप्स में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया गया अबाउट इवेंट प्रोडक्शन, स्टेज मैनेजमेंट, लाइटिंग फॉर लाइव इवेंट्स, रिगिंग, ट्रसिंग, यूजिंग LED स्क्रीन, साइंटिफिक आर्ट बिहाइंड मल्टीमीडिया एंड मच मोर। तो ये आप सुनेंगे तो ये बड़े इंटरेस्टिंग टॉक्स हैं। इनमें से आप कोई 2 फ्यूचर रेडी वर्कशॉप्स के सेशंस जो हैं 1-1 घंटे के हैं या 1.5 घंटे के हैं, इनको आप सुनेंगे और उनके बारे में आप लिखेंगे। यू विल राइट अबाउट द टॉपिक, द प्रेजेंटर एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ईच सेशन इन डिटेल ऑफ 3 pages ईच, along with 2 screenshots of each talk. हर टॉक के 2 फोटोज ले लेना, स्क्रीनशॉट्स ले लेना। स्टूडेंट्स जिनके पास फेसबुक अकाउंट नहीं है, मैं सीक हेल्प फ्रॉम फ्रेंड्स। तो ये जो सारी बातें मैंने आपको आज के प्रेजेंटेशन में बताई हैं, वो यहाँ लिखित रूप में भी आपके सामने हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये बताया गया है। सो इन केस यू आर अनेबल टू अटेंड दीज टॉक्स ऑन द अबाउट लिंक, यू मे अटेंड 2 talks related to events or experiential marketing on YouTube only by event management companies or event managers, and prepare a report. The report has to be not more than 4 to 6 pages, क्योंकि आपकी उसके बाद आपको क्या करना है कि
ये अब मैं सिर्फ इवेंट इंटर्नशिप की बात करूं अगर, तो एक्टिविटी ए है इसमें और एक्टिविटी बी है। एक्टिविटी ए में चॉइस है आपको, एक्टिविटी बी के अंदर भी मैंने कहा है कि कोई 2 फ्यूचर रेडी वर्कशॉप्स के बारे में लिखना है, या फिर आप यूट्यूब में से 2 सेशंस किसी भी इवेंट कंपनी या इवेंट मैनेजर का आप पढ़ के आप बना सकते हो, लिख सकते हो अपना रिपोर्ट। तो ये सारे पेजेस जो हैं इनको आप स्कैन करेंगे और या तो आप इस सारे पेजेस को एक फाइल के अंदर डाल के आप हार्ड कॉपी भेज सकते हैं हेडक्वार्टर्स को, या फिर इनको स्कैन करके अपना नाम, डिटेल, एनरोलमेंट नंबर सब कवर पेज में डाल के वो फाइल का नाम लिखें BHCP011, ये है कोड, और अपना एनरोलमेंट के साथ आप इसको पोर्टल में अपलोड कर सकते हैं, प्रोजेक्ट पोर्टल। ये हो गया इंटर्नशिप का काम। देन यू कम टू प्रैक्टिकम, इसका कोड है BHCL011, ये 4 क्रेडिट्स का है। इसके लिए जैसे कि मैंने कहा था एक वर्कबुक है, तो वो वर्कबुक के अंदर ही आपको सब फिलअप करना है। यू डोंट हैव टू वरी, you can complete the workbook by watching or visiting events online and find out details। तो workbook को as it is आपको follow करना है हर activity, लेकिन आप चूंकि events में physically जा नहीं सकते in real time, you can visit, you can participate in events online, or you can be a part, you can watch the events online, or you can go offline, you can go to events offline, on the ground आप जाके देख सकते हो और आप भर लेना। फिर आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज को खुद से भी कांटेक्ट कर सकते हो, उनसे कह सकते हो कि क्या मैं आपके कोई इवेंट में हिस्सा ले सकता हूं या ले सकती हूँ। उनके डिटेल्स ले लेना वेबसाइट से, और अगर आप जा नहीं सकते तो आप ऑनलाइन उनके साथ इवेंट कर सकते हैं प्रैक्टिकम के भी लिए, या फिर आप यूट्यूब में उनके वीडियोस देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इवेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इवेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट में आप जाके कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फाइंड कॉन्टैक्ट्स ऑफ इवेंट कंपनीज एंड रूरल मार्केटिंग एजेंसीज randomly on Google. This will help you in your career prospects even after your diploma is over. बहुत बच्चों के साथ ऐसे, कुछ बच्चे तो बाहर कंट्रीज में भी चले गए हैं, बहुत बच्चों के साथ ये भी हुआ है कि जहां उन्होंने इंटर्नशिप की वहीं वो लोग अब्सॉर्ब हो गए। तो आपको कोई भी बात में डाउट है, आप मुझको कांटेक्ट कर सकते हो मेरी ईमेल आईडी पे, और आप मुझसे पूछ सकते हो। So these are the facilitative guidelines. As you can see, they are in very simple language, और आपको कुछ इसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। आप बराबर से ये फाइल सबमिट कीजिए और प्रैक्टिकम वर्कबुक सबमिट कीजिए हार्ड कॉपी, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। यदि आप हार्ड कॉपी सबमिट नहीं कर पाते हैं तो आप ऑनलाइन प्रोजेक्ट सबमिशन पोर्टल में दोनों चीजें सबमिट कर सकते हैं, जो कि मैंने येलो में हाईलाइट किया हुआ है। So I hope that clarifies your doubts. यस मैम, थैंक यू मैम। 2 डाउट्स मेरे और थे। फर्स्ट डाउट ये है कि हमारे Should I कॉलेज में stop sharing this? या श्योर मैम। Yeah. मैम मेरा सेकंड डाउट ये था कि जैसे आई एम फ्रॉम NIT जालंधर, तो हमारे कॉलेज में मार्च में एक नेशनल लेवल इवेंट होने वाला है, तो उसमें अगर मैं एज अ कोऑर्डिनेटर काम करता हूँ तो क्या वो एज अ इंटर्नशिप एक्सेप्ट हो जाएगा इग्नू में? देखिए, इवेंट जब होता है तो इट इज ऑलवेज बेटर टू गेट इट, डू योर इंटर्नशिप थ्रू अ रजिस्टर्ड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, वो होता है। तो कॉलेज के इवेंट को आप यूज करेंगे, बी अ पार्ट ऑफ इट, इंटर्नशिप करेंगे, तो I doubt that you will get complete marks for it. You can, include that in another area of your internship also. Okay. But it's better to, or you can use it for your practicum workbook. You can include that as event activity, event management activity. But it is preferable to have, do work, engage with an event management team for an event which is conducted by an event
company or an event agency which is registered. Yeah. ओके एंड मेरा लास्ट डाउट नहीं एज अ रिक्वेस्ट है कि आई मीन मैं एक लिंक शेयर करना चाहता हूँ चैट बॉक्स में सो दैट ऑल माय क्लासमेट्स कैन जॉइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप एंड वी कैन टॉक ईच अदर यू नो गेट टू नो ईच अदर अगर बेटर देखिए ऐसा है कि हम लोग वी डोंट इनकरेज दिस काइंड ऑफ शेयरिंग ऑफ मोबाइल फोन्स ऑन आवर प्लेटफॉर्म और यस अगर सर कोई आप इंटरेक्शन करना चाहें कि आपके जब काउंसलिंग सेशंस होंगे उस दरमियान आप कर लें वी ओके डोंट इनकरेज दिस we can't ask you to share mobile numbers with others. ओके सर नो इश्यूज सर नो इश्यूज And then there are many other students. So my request यस to सर all of you is that you please be brief because and the other students are also waiting for to ask questions. Suresh Barkhane, if you have any question, you can ask. Plus, please be brief while asking Shraddha, questions. Shraddha, she is waiting. Shraddha Raikar. अच्छा सुरेश ने पूछ Yes, लिया श्रद्धा श्रद्धा रायकवाड़ आप पूछ लीजिए yes. Good morning, sir. So, अच्छा डॉक्टर लक्ष्मण प्लीज कोऑर्डिनेट दिस I'm Shraddha ji, please. sir, I have a doubt that I admitted in regional center Nagpur. So, like, I went there to cancel my admission, but unfortunately, I got admitted. So, no problem. I want to continue with the course. I just wanted to confirm that am I admitted to the correct department? Like, I saw that induction meeting for Bhopal. So, is it the same that I like want to join? मतलब मैंने I'll just clarify. I just clarify. See, ये जो induction meeting है, ये regional center wise conduct की जाती है. But we have made this induction meeting as a pan India meeting. So okay, आप okay. इग्नू की वेबसाइट पर अपना एनरोलमेंट नंबर डाल के अपना स्टडी सेंटर, अपना रीजनल सेंटर देख सकते हैं. और ये जो मीटिंग है, since the resource person is a national resource person, so we have invited students from all the regional centers. Okay, okay. So Nagpur. I just wanted to confirm that I am attending the right meeting. That's it. Like, Yeah, if you are a student and you got a mail from IGNOU Bhopal saying that today is induction meeting and you have joined it, then so yes, yes. you are the correct meeting, and because the program is diploma in event management. Thank you. Shraddha, I want to tell you something. Okay, ma'am. Uh, Sure. I think, do you feel fortunate or unfortunate to join this No, I program? feel fortunate. Like that this is not Is the it correct by place accident to. that you joined this or No. Actually, I was interested in event management, but because of financial crisis, I went there to cancel my admission. So, but Papa told me that fees has been deducted. So, and I got the book material also. So it's fortunate. Luckily, I got the job, so I can bear the expenses now with my own. So it's fortunate, not unfortunate. okay. Peace of mind. अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, Thingam Priya, please unmute your mic and you can ask. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. So, like, I wanted to ask something. Like, sir has mentioned earlier that this counseling session was for basically for the Bhopal students, I mean, the regional center. But since I've taken my admission here in Guwahati, the regional center here in Guwahati, so I wanted to ask if there will be separate classes conducted by the center here, or like it's just gonna be a counseling session like as of today that we have attended. It depends upon the number of students who are enrolled with the regional center Guwahati. You can ask your regional center in case they are conducting online classes. You can certainly attend those classes. But from our side, what we can do is that whenever we will be holding such classes for our students, we will send a link to all the students so that if any of them gets interested, they can also take benefit of it. Okay. Okay, sir. Thank you. Thank you. Sehaj Malik. Sehaj Malik. Yes, so actually sir I have a question. जैसे मैम ने अभी बताया था कि जो कोर्स स्ट्रक्चर जो बनाया गया वो काफी सारे और इंस्टीट्यूट और काफी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से बेटर है और उसको लाइक देख के बनाया गया हर चीज को.
तो मैम जैसे एक चीज मैंने नोटिस किया है, लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड इज स्टडिंग इन द प्राइवेट इंस्टीट्यूट। तो उनका क्या था कि उनकी एक इंटर्नशिप टीम बनाई गई थी, जो इंस्टीट्यूट ने ही बनाई थी, और उन्होंने भेजा था फॉर द इवेंट्स। तो हमारे यहाँ इग्नू में कुछ ऐसा होगा या फिर नहीं? देखिए, जो इंस्टीट्यूट्स हैं दे आर लोकेशन स्पेसिफिक, but IGNOU caters to very diverse kind of locations and students living in these diverse locations. तो कई कंपनीज जो हैं वो मुझे कांटेक्ट करते हैं कि हमें इंटर्नशिप, अगर आपके पास कोई स्टूडेंट्स हैं जो इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो वीड बी इंटरेस्टेड टू टेक देम। सो ऐसे हमारे पास आते हैं या फिर रीजनल सेंटर्स के पास आते हैं। So, as such, we haven't built any team because of the diversity of locations and the students. तो इस तरह से नहीं, तो स्टूडेंट्स खुद अपने आप से इसीलिए लोकेट करके या फिर रीजनल सेंटर्स या स्टडी सेंटर्स उनको हेल्प करते हैं इंटर्नशिप के लिए। That is how we function, and this is how we function for other programs as well, other programs of study, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया या आपका साइकोलॉजी के सब्जेक्ट्स के हो गए या कोई भी सोशल वर्क के स्टूडेंट्स हो गए। दिस इज हाउ वी फंक्शन। तो मैम अगर मेरे को कहीं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या फिर किसी भी इंडस्ट्री में इवेंट में जैसे डाइवर्स चीजें हैं तो उसमें इंटर्नशिप चाहिए, तो क्या मैं आपको कांटेक्ट कर सकता हूँ? या अगर मेरे को कई बच्चे कांटेक्ट करते हैं, कई बार मैं उनको दिलवा पाती हूँ, कई बार मैं सक्सेसफुल होती हूँ। एक दो दफे मैं सक्सेसफुल नहीं हुई क्योंकि बच्चे को जो चाहिए था वो मैं बच्चे को दिलवा नहीं पाई क्योंकि उस वक्त अवेलेबिलिटी नहीं थी उस कंपनी में। वो कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मुझे कांटेक्ट करते हैं फिर चुप हो जाते हैं, एंड मैं उनके लिए इवेंट कंपनी से बात करती हूँ, but then they don't revert to me, the students don't get back to me, I try contacting them, तो मेरा face value बहुत कम हो जाता है उनके सामने। So if children are really serious, but like I said, I may not be able to give placements to everyone all the time, but I am in touch with few companies who might be able to give placements, internship placements to students. Yeah. So it's better you look for internship in your area if you have any contacts. And जैसे दिल्ली का मैं कई बच्चों को दिलवा पाती हूँ, कर्नाटका इवेंट एसोसिएशन से मैं टच में हूँ, उनको कभी कभी दिलवा पाती हूँ, बैंगलोर वगैरह। So there are specific people with whom I am in touch with. That's it. अच्छा मैडम, yes, I have last question. अच्छा हाँ, पूछ लीजिए पहले आप। सो मैम जैसे कि अभी आपने बताया 1 to 3 months का एक लाइक इवेंट इंटर्नशिप रहनी चाहिए, और रहनी ऐसे चाहिए नहीं, हो सकता है 3 हफ्ते में ही आपका इंटर्नशिप खत्म हो जाए या 4 हफ्ते में, वो भी हो सकता है, या आपका 4 महीने भी चलेगा इफ इट इज अ लार्ज स्केल इवेंट। सो मैम जैसे आज की डेट में इवेंट इंडस्ट्री में जैसे हमें पता है कि थोड़ा सा जो हाल है वो ज्यादा अच्छा नहीं है, तो वो हमें इंटर्नशिप के वो पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये एक चीज क्लैरिफाई करोगे आप प्लीज? पेमेंट कई कंपनीज देते हैं, कई कंपनीज नहीं देते हैं, वो उनके ऊपर है। हमारे यहाँ ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि बच्चों को पेमेंट मिलना चाहिए। We don't have, our objective is that the student should get hands-on experience, practice in event management, that's it. That is our objective, क्योंकि यहाँ हम लोग कोई financial implications are not involved. Okay, ma'am. Thank That you is so much. dependent on the organization if they want to pay you or not. We cannot tell them. Yeah. Thank you, ma'am. और किसी स्टूडेंट का कोई प्रश्न है? अनूप चौहान, अच्छा ठीक है। मैडम, हाँ क्या आपका? हाँ बोलिए, आप वैसे पहले पूछ चुके हैं, फिर दोबारा पूछ रहे हैं, तो थोड़ा ब्रीफली पूछिए। ओके मैम, आई एम 29, तो मैं एज अ करियर ऑप्शन इसको लेके चलना चाहता हूँ, इवेंट मैनेजमेंट को। मैं अभी फिलहाल में अपने होम से एक इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी चलाना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो क्या ये इस एज में मेरे लिए ये डिप्लोमा कोर्स अच्छा है?
क्या फायदेमंद है? जरूर, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इनफैक्ट 50 साल के मेन एंड वुमेन, दे आल्सो आर गेटिंग इनटू द इंडस्ट्री, दे आर हैविंग स्टार्टअप्स। कई लोग इवेंट इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं तो वो अपना खोलना चाहते हैं इंडस्ट्री कंपनी। तो आप बिल्कुल, देयर इज नो, आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग इटसेल्फ दैट this subject equips you with all those skills that so that you can excel in not just the event management profession but any profession. So ये अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे इंटरेस्ट लेके सब्जेक्ट को, तो आपको वाकई में इंटरेस्टिंग लगेगा एंड you'll want to get into the industry. That is the kind of interest we have created in the content for all of you. So you don't have to worry at all. You're in fact in the right age or maybe underage also for this. So you are getting into the right direction as far as career is concerned. So you don't have to worry. Yeah. Thank you so much, ma'am, increasing my antho, and thank you so much, sir, giving me chance to questioning again. Thank you so much. अच्छा, See, you can be an artist manager, you can be a decor specialist, you can be a creative director, you could be a hospitality manager, you could be a wedding consultant, you could be a production manager, anything, marketing communication specialist in an event company, anything you can be. You can even start your own event I'm agency. trying, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. अच्छा मैडम, एक प्रश्न ये था कि जैसे आपने बताया कि इवेंट रजिस्टर्ड इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज होनी चाहिए इंटर्नशिप के लिए, ये गाइडलाइन बहुत स्ट्रिक्ट है क्या? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं रीजन सेंटर भोपाल के, वो काफ़ी एक दूर दराज के इलाके के, एक धार जो यहाँ का एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, उस इलाके के हैं ज़्यादातर ये स्टूडेंट्स। और क्योंकि वहाँ के हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने विशेष प्रयास करके इन स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया है। और वैसे मेरे एक जो जहन में एक बात आ रही थी वो ये कि ट्राइबल एरियाज़ में कुछ ट्राइबल फेयर्स होते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज करता है। इनका बहुत महत्व है इसलिए क्योंकि ये वहाँ के जो लोकल जो ट्राइबल्स हैं उनको लाइवलीहुड्स देने के लिए और उनके प्रोडक्ट्स की सेल करने के लिए, उसके लिए काफ़ी बड़े रूप में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। मीन्स इसका जो मैग्नीट्यूड है ऑर्गेनाइजेशन का काफ़ी बड़ा होता है। हम लोग क्या इन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जाके अगर हम इंकरेज करें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो ऐसे स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर ले इस टाइप के फेयर्स के ऑर्गेनाइजेशन में और वहाँ ये अपनी इंटर्नशिप भी कर लें, मुझे लगता है काफ़ी अच्छे नई नई चीज़ें निकल के सामने आ सकती हैं, क्योंकि ये बच्चे तो काफ़ी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड लेके उस टाइप की चीज़ों को मैनेज करेंगे। और मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से कि उन ट्राइबल फेयर्स का जो वो है पोटेंशियल है वो रियलाइज नहीं किया गया है, क्योंकि उन इवेंट्स को अगर बड़े रूप में मार्केट किया जाए तो हम वहाँ के लोकल ट्राइबल्स के लाइवलीहुड्स में काफ़ी इफेक्टिवली उसमें उसको पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। और इस सेंस में हमारे इस प्रोग्राम का भी बहुत ही एक अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा और लोकल लेवल पर हमारे बच्चों को भी एक ऐसी इवेंट में पार्टिसिपेट करने को मिल जाएगा, क्योंकि अदरवाइज अगर रजिस्टर्ड इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज अगर हम कहें तो इन एरियाज में इनको कहीं नहीं मिलेंगी, उस केस में इनको वहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर जैसे कि शैलेंद्र शर्मा जी हैं और डॉक्टर हरिओम भी हैं, तो अगर आपका कोई इसमें आप कुछ ऐड करना चाहें तो आप कर लीजिए प्लीज, क्योंकि ये स्टूडेंट्स फिर जब आपके पास सलाह लेने को आएंगे तो बाद में फिर आपको दिक्कत होती है। हरिओम जी आप हैं या शैलेंद्र शर्मा जी? जी सर। हाँ, तो अगर ये जो स्टूडेंट्स के जो इंटर्नशिप के लिए आपको किस टाइप की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं तो अभी मैडम से पूछ सकते हैं। मैम एक्चुअली जो सर ने कहा वही प्रॉब्लम आती है कि जो ट्राइबल एरिया हमारा है यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ऐसा कोई जो कंपनी है इवेंट मैनेजमेंट कंपनी नहीं मिल पाती जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से उसको इंटर्नशिप कर पाए हो। See, can I come in? Can I answer your question, Dr. Pandey? हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा और बहुत अहम है। I also understand the constraints which students face in locating or identifying a registered event company. See, पहली बात तो है कि registered event company मैंने इसीलिए कहा क्योंकि जब ये लोग इवेंट इंडस्ट्री में एंटर होते हैं कहीं पे जॉब के लिए, तो उनसे पूछा जाता है कि आपने इंटर्नशिप कहाँ से किया या कैसे किया।
So that is why we had to keep that bar of getting it done through a registered event company. कोई टेंट वाला या कोई खोखा वाला या कोई वेंडर ऐसा हो जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, उससे नहीं किया हो, ताकि एक इग्नू का एक स्टैंडर्ड है और इसको जो डिजाइन किया है लोगों ने, जो इंडस्ट्री वाले थे, उन्होंने ये कंडीशन रखी थी, विच इज वेरी वेरी एसेंशियल. सो ये कंडीशन है. नाउ सेकंड, जो आप कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल काउंसिल्स हैं जो ये सब मेला वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं रूरल डेवलपमेंट के सेक के लिए या रूरल एरियाज में, डेफिनेटली स्टूडेंट्स कैन डू इवेंट्स ओवर देयर. क्योंकि उसमें क्या होगा कि अगर वो कहीं से एक सर्टिफिकेशन ले आए कि हाँ हमने यहाँ से किया है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से किया है, उनके पास से उनके जो ऑफिशियल है उनसे एक सिग्नेचर भी ले आए, दैट विल बी इनफ, बिकॉज दे आर द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द इवेंट. सो दैट इज ऑल्सो फाइन. वो भी ठीक है अगर वो लोग इस तरह से एंगेज करते हैं. Only thing is it should be from some body, organized body. That is very very important. क्योंकि जब ये लोग इंडस्ट्री में एंटर करेंगे तो इनसे यही पूछा जाएगा कि आपने इंटर्नशिप कहाँ से की है. अगर बच्चा कहता है कि मैंने अपने कॉलेज में की है, तो उसका वेटेज कम होगा बनिस्बत की उस बच्चे के लिए जो कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करके आता है, और उसको ज्यादा अहमियत दी जाएगी. इसीलिए ये कंडीशन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और बाकी एक्सपर्ट्स ने डाला था जब हम ये डिजाइन कर रहे थे. लेकिन अगर वो कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी करते हैं या कोई मेला में पार्टिसिपेट करते हैं, उसका हिस्सा बनते हैं, उसके कंसेप्चुअलाइजिंग या प्लानिंग या इम्प्लीमेंटेशन में, दे आर मोस्ट वेलकम. बट कहीं पे उनका एक सिग्नेचर हो या कुछ हो, दैट विल रियली हेल्प. क्योंकि उनको आगे जाके जब वो इंटर्नशिप रिपोर्ट दिखाएंगे कहीं, तब उनको बच्चे के लिए ही फायदा होगा. दैट इज व्हाट आई मीन. ओके ओके. और जो इंटर्नशिप सुपरवाइजर है उसके नाम की कोई अप्रूवल, प्रायर अप्रूवल तो लेने की जरूरत तो होती नहीं है, तो ये स्टूडेंट्स अपने आप डिसाइड कर सकते हैं. नो, वो इंटर्नशिप सुपरवाइजर जब आप रजिस्टर्ड इवेंट कंपनी में बच्चे करते हैं तो वो सुपरवाइजर का साइन होता है, वो मार्क्स देता है. अगर मार्क्स देने का ऐसा सिचुएशन है, दे कैन जस्ट सबमिट द फाइल एंड दे विल बी इवैल्यूएटेड फॉर 100% ऑफ द. वहां पे उन्हीं के लिए डिफिकल्टी है, बिकॉज जो इंटरनल इवैल्यूएशन होगा उसमें जो इवैल्यूएटर्स हैं इंटरनली, वो लोग उनको पूरे मार्क्स देंगे. उसका पूरे ग्राफिक डिटेल्स होने चाहिए कि ये स्टेज में ये हुआ था, जो भी वो मैनुअल में दिया है वो है. वो हम सब ने रिलैक्स कर दिया है बच्चों के लिए. अच्छा, मीन्स अगर एक्सटर्नल ने नहीं भी किया है तो भी अगर स्टूडेंट ने कोई रजिस्टर्ड इवेंट कंपनी से किया भी है लेकिन उसमें सुपरवाइजर का सिग्नेचर नहीं भी है, बट द वर्क इज, बट स्टैम्प तो होना जरूरी है, बिकॉज देन ओनली विल कम टू नो दैट द स्टूडेंट हैज. क्या पता उस स्टूडेंट ने कुछ बच्चे कॉपी कर लेते हैं या दे गिव प्लेगियराइज लिफ्टेड कंटेंट होता है वेबसाइट से, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. दैट इज व्हाई दिस कंडीशन इज देयर. ओके ओके. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच. ओके, थैंक यू. और अब मुझे लगता है क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया है, और मैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो जिनकी शायद कोई एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेरीज होंगी, वो उनके लिए भी सेशन ओपन है. और अगर वो चाहें तो अपनी किसी टाइप की कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज भी अगर हों, क्योंकि हमारे यहाँ पर डॉक्टर अंशुमन उपाध्याय भी हैं और मैं भी हूँ, और हम लोग आपके जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं उनको भी डील करेंगे. कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. एंड लास्टली आई वांटेड टू से कि अब तो इंडस्ट्री ने भी कहा है कि बच्चों को कोरोना गाइडलाइंस, कोरोना के चलते चलते गाइडलाइंस के हिसाब से they can just view events on the YouTube and all, but if they are doing on the ground offline, then it has to be like that, like what I said. Okay, रूरल एरियाज में भी कर सकते हैं, बट एक ऑर्गेनाइजेशन के स्टैम्प और सिग्नेचर या स्टैम्प हो वो भी काफी है. Thank you very much, madam. Thank you so much. Your time and your presentation, and all of our students have greatly got benefited by. Now I request Dr. Anshul to please make a small presentation on how the examinations will be conducted and how they have to submit their assignments. So, with your permission, if I can, I may be allowed to leave.
बच्चों को कोई प्रश्न तो नहीं है मेरे से? No, sure, ma'am. Okay. We understand your मैम एक छोटा सा प्रश्न हमारे कलीग डॉक्टर नायक जो कि देखते हैं वो पूछना चाहते हैं, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। प्लीज। अच्छा, उन्होंने ये पूछा है कि जो हमारे इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट के पेमेंट नॉर्म्स हैं उनको अगर आप अलग से कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। I don't think there are any payment norms because इसका evaluation जो है study center, sorry, जो बच्चा practicals करता है, जो practical workbook है वो तो 100% headquarters में evaluate होता है और इनकी कोई counseling नहीं होती है, तो there are no payment norms for this, both practicum and internship. Okay. If there is anything if there is something, we can have a call with the officials at your center and we can modify the norms also. There's no issue at all. You can let me know your concerns in another closed meeting with the officials at your center. Okay. And I'll try if I can Thank help you. and take it forward. Yeah. Thank you so much. Thank you. Okay, ma'am. Thank you. Thank you, Pandeyji, Anshumanji, entire team. Okay. Thank you, ma'am. Thank you very much. Of RC Bhopal and other RCs. Thank you so much. Thank you. Okay. Dr. Akshan, please quickly make a presentation and after that we can. Thank you, sir. मैं सभी को बताना चाहूंगा, I would like to inform everyone that you have been admitted in July 2021 session. This is 1 year course, ये 1 साला कोर्स है जो आपका एग्जामिनेशन जून 2022 में होगा. If everything remains all right, and we hope for the same. So your examination will be after 1 year because IGNOU we have a common examination for across the country, same date and like that. So before examination, you have to fill an examination form through IGNOU website, and you have to fill the examination form for all the papers. It is all online process and you have to fill the form. You have to select the center. आप जो center चाहे आप वो ले सकते हैं. और जैसा कि एग्जामिनेशन फॉर्म you have to fill for those courses, उन subjects के लिए जिसमें आपको exams देना है. So you have to fill the examination form, and for that every course you have to give a fees Sir, of 200. You have to pay a fees of 200 rupees. वो ऑनलाइन होगा. जैसे मान लीजिए आपके 3 कोर्सेज हैं या 4 हैं, तो you have to pay accordingly 200 into 8 into 4, that is 800 rupees. So that will be the online only, and the examination you have to select exam center near to where you are residing. उसके लिए आपको रीजन, जैसे कोई मान लीजिए गुवाहाटी में है तो वो गुवाहाटी का चुनेगा, कोई महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र में पुणे का चुनेगा. तो you have to select the region, and then once the region is selected, the examination center will appear in the drop down menu and you can select the examination center. जो भी आपको एग्जाम्स जहां भी देना है वहां पर आप एग्जाम सेंटर चुन सकते हैं. सबसे पहले आप ऑनलाइन पर इग्नू की वेबसाइट पर जाएंगे, रजिस्टर ऑनलाइन पर जाएंगे, टर्म एंड एग्जाम्स को क्लिक करेंगे और उसमें आपको फॉर्म भरना है. लेकिन ये प्रक्रिया आपको करनी है मार्च 2022 में. प्लीज नोट डाउन द डेट्स. You have to keep on checking the IGNOU website. All important information are present in IGNOU website. सभी लोगों को ये लगता है कि हम कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना दें और उससे आपका कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. दैट इज हम लोग का एक्सपीरियंस रहा है, उससे कुछ भी ऐसा नहीं होता है. सो वी डोंट एंडोर्स फॉर द व्हाट्सएप ग्रुप्स. बेटर ये है कि आप अपना प्रोग्राम गाइड पढ़ें अच्छे से. वी हैव ऑलरेडी सर्कुलेटेड इन द यस्टरडे मेल. मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रिटन. For the last dates and other dates, we advise you to always check IGNOU website. कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो IGNOU वेबसाइट पर पहले अपलोड होगी. उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी बच जाती है तो you can always mail to your concerned regional center. जहां आपका regional center है, you can send a mail with your details, your enrollment number, your study center. First, everyone will check their admission status from the IGNOU website. You can go to student zone. Student zone में आप click करेंगे. आज थोड़ा slow है because today is the last date for the examination. तो बहुत सारा ट्रैफिक है. इसके बाद आप देखेंगे तो वेबसाइट पर खुलेगा. रजिस्ट्रेशन जोन में जाएंगे, वहां पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन होगा और उसमें आप अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, which is 10 digit number.
21 से आपका शुरू हुआ है, एंड यू हैव टू कोट दिस एनरोलमेंट नंबर एट एवरी प्लेस, योर असाइनमेंट्स, your examination and all your communication which you make with your regional center. So ये this enrollment number is your unique identity. ये आपकी वो पहचान है जो इग्नू के 40 लाख विद्यार्थियों में आपको पहचाना जाएगा. So you have to write the enrollment number correctly. The second step is assignment. Assignment is a homework, is a question paper which is available on IGNOU website. IGNOU की वेबसाइट पर जाना है और आपको असाइनमेंट सेक्शन में जाके, डाउनलोड में जाके असाइनमेंट्स में जाना है. तो डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट आप प्रोग्राम जब चेक करेंगे तो उसमें असाइनमेंट्स खुल जाएंगे. आपको जुलाई 2021 सेशन के असाइनमेंट्स को करना है. यू हैव टू डू द असाइनमेंट्स व्हिच आर वैलिड फॉर जुलाई 2021 सेशन. उसको आपको डाउनलोड करना है. उन असाइनमेंट्स को आपको लिखना है अपने वर्ड्स में. यू हैव टू राइट द असाइनमेंट्स इन प्रेफरेबली A4 साइज पेपर, जो कि वेरी कॉमन पेपर होता है. यू कैन गेट एनीवेयर A4 साइज ब्लैंक पेपर. आप दोनों तरफ पेपर में मार्जिन बनाएंगे और असाइनमेंट्स को लिखेंगे इन योर ओन हैंड राइटिंग, इन योर ओन वर्ड्स. असाइनमेंट शुड नॉट बी कॉपीड फ्रॉम वर्बेटम फ्रॉम द बुक्स, द स्टडी मटेरियल. और असाइनमेंट्स को आपको अपने शब्दों में लिखना है. ना तो आपको असाइनमेंट बुक से कॉपी करना, ना किसी स्टूडेंट का कॉपी करना है. तो इस तरह से आपको असाइनमेंट्स लिख के आपको अपने स्टडी सेंटर पर जमा कराना. प्लीज नोट, नाउ एवरीथिंग इज बीइंग ओपनड अप, so you have to deposit your assignments at your study center. If you are not able to go to your study center, you can also send by speed post. Please use government speed post only. And prior to submission of assignment, you should keep a photocopy of your assignments so that in case of any loss or any untoward incident that can be taken care of. तो आपको असाइनमेंट जमा करने से पहले उसको फोटोकॉपी करा के उसकी एक कॉपी अपने पास रखनी है. असाइनमेंट्स आपका जो लास्ट डेट है दैट इज 31st March. It may increase for the extension of any last date. You have to keep on checking the website, IGNOU website. इसके अतिरिक्त सभी रीजनल सेंटर अपने स्टडी सेंटर्स को बढ़ी हुई तारीखों का, बढ़ी हुई डेट्स के बारे में बताते रहते हैं. तो इस तरीके से आपको नजर रखनी है IGNOU की वेबसाइट पर. आपको अपने लास्ट डेट्स पर नजर रखनी है. और प्लीज खासतौर से जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म के लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए. बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि वो लास्ट डेट का इंतजार करते हैं. लास्ट डेट में वेबसाइट नहीं चलती है, पेमेंट कई बार रुक जाता है, ऑनलाइन पेमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, टेक्निकल ग्लिच आती है, तो उनको फिर लेट फीस से एग्जाम फॉर्म भरना पड़ता है. एग्जामिनेशन आपका मोस्ट प्रोबेबली जून में होगा, जिसकी टेंटेटिव डेट शीट जनवरी-फरवरी 2022 तक आ जाती है. And you can plan accordingly for your examination. And one thing I would also like to tell you that for every course there is a minimum duration. For this course, the minimum duration is 1 year and maximum duration is 4 years. तो आपको ये पता चल जाएगा जब आप अपना रजिस्ट्रेशन स्टेटस देखेंगे, तो उसमें आपका डेट लिखा रहेगा कि द कोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम जुलाई 2021 and it will end in so and so month. So please check कि you should complete this course within that minimum duration only. फर्स्ट एग्जाम्स आपका होगा. एग्जाम से पहले आपको हॉल टिकट मिलेगा जो कि IGNOU की वेबसाइट पर है. उसको आपको डाउनलोड करके you have to go to the exam center and you have to appear in the examination. After examination, the results will be declared within 45 days. So for the results, you have to complete your assignments. आपको अपने assignments, अपने theory और जो ये internship है इसको कंप्लीट करेंगे. जब आपका सभी कंपोनेंट कंप्लीट हो जाएगा तो मार्कशीट आपके घर पर आएगी. और बाद में जब कॉन्वोकेशन होता है तो आपको डिग्री के लिए अप्लाई करना पड़ता है और उसके बाद आपको डिग्री मिलती है. तो ये कुछ प्रक्रिया थी जो मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको बताना चाहता था. और इसका विस्तार जो प्रारूप है वो आपके प्रोग्राम गाइड में लिखा हुआ है कि कैसे करना है और क्या क्या आपको करना है. आपको हम लोगों ने सबने अटैच करके प्रोग्राम गाइड भेज दी है. जिन्होंने अटैचमेंट में नहीं देखा है, जिनको मेल नहीं मिली है, वो IGNOU की वेबसाइट पर जाके इस प्रोग्राम का नाम और प्रोग्राम गाइड लिखेंगे तो वो भी उस पर उपलब्ध है. तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको एक बार शुभकामना देता हूँ फॉर दिस प्रोग्राम. और ये आशा आपको ये पूरा आशान्वित करता हूँ कि आपकी जो भी समस्या होगी आपके क्षेत्रीय केंद्र उसको सॉल्व करेंगे. परंतु आप अपने क्षेत्रीय केंद्र को टाइमली मेल द्वारा सूचित कीजिए
जो भी आपकी समस्या है, जो भी डाउट है, and they will try to solve your issue. One thing more I would like to add कि जो इग्नू का जो ODL पेडागोजी है, जिस मेथड से आपने इसको ज्वाइन किया है, इसमें जो हमारा स्टडी मटेरियल है दैट इज 90% ऑफ योर टीचिंग। उसमें पहले आपका टीचर है और उसी माध्यम से आपको पढ़ाया जाता है। सो यू हैव टू गो थ्रू द स्टडी मटेरियल। उसके बाद जो बचता है 10%, उस 10% में हम लोग काउंसलिंग सेशंस, ऑनलाइन सेशंस, रेडियो सेशंस, ज्ञान वाणी, ज्ञान दर्शन के माध्यम से आपको ज्ञान धारा के माध्यम से आपको ये सारी चीजें हम लोग बताते हैं। तो आप ये इंतजार मत कीजिए कि आपका कोई क्लास होगा या कोई सेशन शुरू होगा तब आप पढ़ाई शुरू करेंगे। इग्नू में जिस दिन से आपने एडमिशन लिया उस दिन से ही आपकी क्लास शुरू हो गई और आप अपना स्टडी मटेरियल को पढ़ना शुरू कीजिए। जिन लोगों ने सॉफ्ट कॉपी में स्टडी मटेरियल मांगा है उनको उनके घर पर स्टडी मटेरियल नहीं आएगा, उनको स्टडी मटेरियल ई ज्ञान कोश से डाउनलोड करना है। जिनका अगर एड्रेस गलत है तो उनका स्टडी मटेरियल लौट के अपने क्षेत्रीय केंद्र चला जाता है, तो आप अपने क्षेत्रीय केंद्र पर भी संपर्क कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। और मुझे लगता है कि अब बहुत सारे प्रश्न हो गए होंगे, बहुत सारी शंकाएं आपके समाधान हो गई होंगी। इसके अतिरिक्त भी अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। इस अनुराग एंडी प्रसाद प्लीज अनम्यूट करके आप प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी जी सर, मेरे को पूछना था हार्ड कॉपी हमें कैसे मिल सकती है? किस चीज की हार्ड कॉपी? स्टडी मटेरियल की हार्ड कॉपी। स्टडी मटेरियल की हार्ड कॉपी आपको आपके घर पर आएगी। आप अपना स्टेटस भी ट्रेस कर सकते हैं इग्नू की वेबसाइट पर। अगर आपने हार्ड कॉपी के लिए मांगा है, लेकिन अगर जिन लोगों ने सॉफ्ट कॉपी के लिए अप्लाई किया है और उन्होंने 15% फीस कंसेशन लिया है तो उनको मटेरियल नहीं घर पर आता, उनको सॉफ्ट कॉपी से ही मैनेज करना पड़ता है। अच्छा नहीं सर, मेरी फीस पूरी हो चुकी है सब कोई कुछ। बात नहीं, तो अभी आएगा, आप अपना ट्रेस कर लीजिए। वो आपके एड्रेस पर, जो आपके कंसर्न एड्रेस है उस पर आता है, और आप अपने पोस्टमैन को भी ट्रेस करके रखिएगा। मैं अपने इग्नू के साइट पे कैसे देख सकता हूँ? इग्नू के साइट पर नीचे जाइएगा, पर एक डिस्पैच स्टेटस है, आप उसमें सेशन 2021 डालेंगे तो वो एक लिंक खुलेगा। उस लिंक पे आप अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे तो उससे आप देख सकते हैं। ओके सर। और ऑनलाइन क्लासेस ही रहेंगी ना हमेशा? नहीं, देखिए ये इसको हम लोग सेशंस कहते हैं। दिस विल बी इन हाइब्रिड मोड, ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, और इसके लिए आपका कोई जाना कंपलसरी नहीं होता है। ये इट डिपेंड्स अपॉन योर स्टडी सेंटर, number of students there, and their planning for conducting of academic counseling. Okay, so if you guys are planning for an offline but however session, if there are so if when you will get you a link from अगर other जैसे regional कल centers also, you are always welcome to join the counseling sessions being conducted, है ना? तो there is no उसकी डिटेल्स को मेल पे आती जी रहेंगी। बिल्कुल, आप लोग अपना मेल चेक करते रहिए और अपने स्टडी सेंटर के कांटेक्ट में रहिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू पांडे सर। शुड वी वाइंड अप और एनीथिंग? हमारे साथ डॉक्टर स्मृति गार्गव भी हैं, डॉक्टर सुभाष रंजन नायक भी हैं, और हरीश जी भी हैं। इफ एनीवन वांट टू ऐड एनीथिंग? किसी को अगर कुछ और कहना है तो वो ऐड कर सकता है। पर्याप्त है सर, जितना बताया गया इस मीटिंग के दौरान, तो मुझे लगता है पर्याप्त है जी। पांडे सर, नमस्कार। नमस्कार सर, इसमें ऐड करने का बहुत कुछ तो नहीं है मेरी तरफ से। मैडम ने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया, इंटर्नशिप को, हमें भी कुछ चीज़ों की नॉलेज नहीं थी वो भी पता चली, और अंशुमन सर ने और जो हमारे साथी गण थे। बस चूंकि एडमिशन से हूँ तो एक चीज़ कहूँगी कि बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हो सकते हैं जिनको एडमिशन रिलेटेड कोई क्वेरी हो। एडमिशन में अपने डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लें, कोई गलती तो नहीं है। और दूसरा, अगर आई कार्ड कोई डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं या आईडी पासवर्ड जैसी कोई चीजें हैं जो आपको दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है smriti@ignu.ac.in। मैं ये आरसी भोपाल के लर्नर्स के लिए ये बोल रही हूँ। आरसी भोपाल के लर्नर्स जिनको एडमिशन रिलेटेड कोई इशू हो तो आप वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं साइड में चैट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी लिख रही हूँ। मेरे ख्याल से बाकी सारी चीजें तो डिस्कस हो ही चुकी हैं, तो
और टाइम भी शायद ओवर हो चुका है तो जी जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर स्मृति गार्गो. डॉक्टर नायक, यू वांट टू ऐड एनीथिंग? Pandey sir, can we now wind up this meeting? What we can do is that we can conclude the session now, because it is already going to be 1 o'clock now. So we can wind up the session now. So please propose a vote of thanks, Dr. Thank you, sir. इस मीटिंग को, इस इंडक्शन मीटिंग को और एक इंटरैक्शन सेशंस को जो कि पैन इंडिया लेवल पर आयोजित किया गया, इसके लिए मैं सबसे पहले हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा प्रोफेसर हिना बिजली मैम का, जिन्होंने बहुत ही विस्तार से हमारे छात्रों को द्विभाषी यानी बाइलिंगुअल मेथड से प्रेजेंटेशन से एक एक बात बताई, और खास तौर से जो इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स के बारे में बहुत सारे डाउट्स थे उसके बारे में भी बताया. हम लोग ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो लोग देर से आए या जो लोग नहीं सुन पाए या नहीं समझ पाए, उनके लिए हम इस रिकॉर्डिंग को शेयर करेंगे, जिससे मैडम के जो भी डेलिब्रेशंस हुए हैं उनको वो देख सके और वो अपने स्तर से उसको देख कर समझ सकते हैं. मैम, आपका सभी छात्रों की ओर से, इग्नू के सभी छात्रों की ओर से, क्षेत्रीय केंद्र भोपाल, क्षेत्रीय केंद्र जबलपुर एवं अन्य समस्त क्षेत्रीय केंद्रों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय से आभार. मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं अपने वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर यूसी पांडे सर का, जिनके कुशल निर्देशन में इस कार्यक्रम का आयोजन हो सका. इसके अतिरिक्त मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा अपने सभी साथी का, डॉक्टर कुमुद वर्मा, डॉक्टर सुभाष रंजन नायक, डॉक्टर स्मृति गार्गव, डॉक्टर हरीश केवट और भी जो लोग हमारे रीजनल सेंटर से जुड़े, उन सभी लोगों का धन्यवाद. मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा आदर्श इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा सर का, डॉक्टर हरिओम विश्वकर्मा सर का, जो लोग विद्यार्थियों को ग्रामीण क्षेत्र में भी इस मैनेजमेंट, इस प्रोग्राम के बारे में, इवेंट मैनेजमेंट के बारे में हमेशा गाइडेंस देते रहते हैं और उनको मोटिवेट करते रहते हैं. सर, आपका भी बहुत धन्यवाद. इसके अतिरिक्त मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी विद्यार्थियों का, जिन्होंने बहुत ही शालीनता से, बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से पिछले 2 घंटे से इस पूरे डेलिब्रेशंस को सुना और उसको समझा और उसके साथ साथ हमारे रिसोर्स पर्सन से इंटरैक्ट किया. सो थैंक यू टू एवरीवन फॉर दिस वंडरफुल सेशन. With this, I would like to end this session. Thank you and thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir.